will teach you how we can use Bootstrap in our HTML, and how it is helpful, uh, than our custom CSS. Okay, so let me share my screen. Sir, Yes, one thing, as you have told me that whenever actually we use the Bootstrap in CSS, we should try to use it the same CSS version. same CSS version me. Means that CSS is a framework. Okay, so Bootstrap is Okay. a framework which is using in CSS. Okay, so Yeah. suppose we are using React.js, so React type React Bootstrap we should use like that. Yes, yes, yes. If you are working with React JS, then try to use React Bootstrap. Actually, it's almost the same, but you know, like in HTML, in plain HTML, we use class, and then in React we use class name, like that. Okay, so they have modified few things, but it is almost same. Yeah, you catch the right point. Like if we are working in React, we should use React Bootstrap only, and not only that, when you define an HTML, try to use all the features which you get it here. Okay, don't try to over improvise yourself, and write a custom CSS, because in that way you cannot leverage the flavor you want to add in your application with the Bootstrap. Then what happened, at some point of time, your Bootstrap CSS and your custom CSS will try to override each other, and then your page responsiveness, you will find issue with your page design and everything. Okay, so hide it. Okay, so if you see the Bootstrap, if you go to the Bootstrap main website, I think current version is V6. Okay, latest is V4.1, but current version, unstable version, is V5. Okay, so this is the latest version, V4, and if you go there, you can get the definition of Bootstrap. Like, what is Bootstrap? Bootstrap is the world most popular framework for building responsive mobile first website sites. Okay, and it use JS deliver and the template starter page. So this is the definition of Bootstrap. The Bootstrap is nothing but it is a framework for building the responsive mobile first site. So this means, like, at that time when we created the HTMLs, when we created the templates, we used to give some CSS. Okay, this was, we used to give some CSS like this, right? Media query, like how your website should look like, and based on this we determine the responsiveness, right? What Bootstrap did, they they also, when we include this framework, when we include this library into our page or into our application, uh, they they have this kind of media query, and they always the preference of this media query goes first from mobile, then a tab, then the desktop. Mean it give first difference to the mobile media query, which they have built internally, and then a tab, then website. Your application which you will build in Bootstrap would be more responsive toward mobile. Or it would be mobile responsive. It would be by default, if you use this library, your website will work in mobile also. Okay, and you don't have to give this kind of media query uh, in all the cases, because they will, for most of the cases, these media queries have been taken care by by this framework only. Okay, so what you need to do, I will not take much time on this. You have to go to this main website, that is uh, bootstrap bootstrap site, and uh, mm, try to
create something. Okay, in right left panel you will get all those things, like how those things are. So just go there, see this thing, like what is component, what is alert, how it is work, how it change the design and everything. You you just play every features, everything which you see, create a simple HTML, and then see how it is working on. Okay, the main thing I will teach you here, like how can we use the grid in our application. Do you know grid system? Grid. Yeah, grid, grid system. Grid I know because it's combination of row and columns. Okay, 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 in ASP.NET application or in standalone application, I use grid. Okay, to display okay, some data in okay, in row format, row column formats. Okay. okay, okay. Anything else you have? Anything else? Actually, And whenever basic, we display multiple data, suppose we have 50 students records. Okay, so at that point of time, we actually populate it in a grid. Okay. Am I right? Yeah, you are right somehow. Anything else? Sorry, who is telling right now? Let me unmute him. Okay. Any other view regarding this grid system? basically we use grid for breaking our or what we can say that breaking our whole website into small components or small Okay, pieces okay, great. to So make it what? our visualization easier. Okay, yeah. So what grid does? It break our application in this kind of format. Okay, in tabular format, and Sir, in your screen total. is not visible. Oh, sorry. Let me reshare it. I am sharing my screen. Let me stop and restart. Share screen. Entire. Okay. See what grid does. It will partition your screen. Okay, based on in a tabular format. So whatever thing you see here, this is called as one row, and then this is called as column. Okay, so they have used the same way. So whenever we declare any class with div with row, then it will take the whole length of this table. Okay, right? And same if we declare any column, mean mean the total number of, sorry, in grade system, for each row there can be maximum 12 column. Okay, so we can divide one line into 12 part, 12 equal parts. Okay, and how we'll write this class? We can give div class equal to row. Let me do it from here only, then I will, and then div class equal to call. Okay, call, then 1 to maximum 12 we can give. So what it will do, and if I close this div and close the main div as well. So what it will do, if I
give another row with this and make it 4. So for first case, it will assign one column, and on all 12 play or on all 12 columns, sorry, first it will assign one row, mean a horizontal space, where on this 12 partition, mean on together, this h will reside, mean this h will be here, and based on our css we can move it on left, right, or any other place. Okay, but if I write a class like this, row call 4, then the moment of this, the placement of this h for second play case would be in between this 4, this till this place. Okay, so if my screen is generally 1440, then for each column be a bootstrap uh, provide this much of space. Okay, if we divide it by this, then the space would be 124, 120 pixel of space. Okay, so other than in last time what we have seen, like we have to give some percentage, right? We have to give the width in some percentage. Here we should not think about that. Mean this percentage calculation based on the different device. Again, you can see based on the different device, we have to change few things. We can change the width percentage, we can change this kind of thing. What bootstrap does, it does this kind of calculation on their end only. What it did in grid system, it created a row mean one line, and then column mean it divided that line into 12 equal space. What is the space? The space is 120 pixel. Or if I divide 100 by 12, then what would be the percentage? Let me open the calculator. Okay, okay. So this would be 8.33 percentage. Okay. So suppose if we want a space to be filled up a 60 percentage of any of our horizontal space, then if we just give something like this col 8, so what it will do, no, col 7, col 8 will take the 66 percentage of our space. Okay, so in this way we can provide the width of our div and make our class dynamic, and we will see much more thing we can do. But for now, in grid system we have row and column. So each row contain 12 column. We write class like this, and to work it response to be a responsive, we can give some more class like lg 2. I will explain those things. Call MD4. So this kind of thing I will explain, like how the responsiveness will work on any row. But we define a class like this, and then based on this class, based on this kind of calculation, it provide the space. If we talk on pixel, then for each call, like if this is 2 call, mean 2 into 120 pixel for this device. If any device have some other width, like in mobile my width is my screen width is 520, then again based on this calculation it would be for each call it would be this much of space. Okay. 540 divided by 12, so it would be 40 pixel for each call, right? And then same thing
In percentage, it would be 8.33 percentage of that screen. Okay. So this kind of calculation, we should not bother. We should not bother because this calculation are being taken care by Bootstrap itself. Okay. So let us see how we can add a Bootstrap in our application. What we will do, I will create one new folder. Hello, Yes. no, sir. Yeah. Last day's class, have you actually pushed your work in GitHub? I think yes. Let me see. Uh, yeah. My work is not in actually I have not been connected to GitHub, but yes, I will try to connect it Yeah, whenever yeah, I I will. think yes, because my code is connected there, and in video description I had provided the link also. Okay. Yeah, updated now. So here you can get all the folders. Okay, and the code for HTML is in this folder. Okay. So, okay, let us start. So what I did, I created this uh, one folder called Bootstrap, and I will put my code here. So what we need some HTML. Uh, I will use the same thing, template dot html. Okay. And in order to use Bootstrap, what we need, let's go to the starter point. So if you want to use a Bootstrap, see CDN link. Bootstrap, yeah, Bootstrap provide two things to us. First, it provide a design, and second, it provides some jQuery or JavaScript mean, mean, features also, like models and all those things. Okay, so for that we use the JS also. So if you are working only in CSS by using the Bootstrap, if you only include this file, this CDN URL, that would be fine. And if you use some Bootstrap component, uh, like models and many other things are there. So for that you need this JS CDNs also. Okay. Sir, Yeah. sir, by using this CDN link, uh, hello, Yes. Tell me. by using this CDN link, a whole the whole CSS written by Bootstrap will embedded in our website. Yes. Okay, got it, sir. Okay. Means it will See, load. It will what not happened? be. What happened? Let Yeah, me sir. show you. Okay. If I copy this URL, you can do it in many people prefer, like, they go there, they download this CDN. Okay. They download this CDN. The benefit of this thing, or yeah, yeah, you can download the CDNs also. So benefit of that is your CSS class is with you. Okay. Right. So what they have Yeah, done, means they did if not. a server Yeah. is down sometime, then your classes will be there for you, right? Yes, yes, yes. So ideally, the serial should be in your local machine only. Okay. So what is the you can say this. It is the same thing what we have done on last time, right? Nothing extra. It is using the same CSS, right? Everything they have, they are using the same. And if you mean, reminified it and make it visual friendly, you will find, okay, it's the same thing. They are using the media query, they are using those thing, and they're using the class also. Like for row, column, you will see they have just done this kind of calculation, like how should we display, right? How, see, the max width, it is taking the full length. Why it is taking the full length? Because they have defined like max width would be this.
call 1 2 3 4 5 6 everyone, they have provided the different classes. So it's nothing but it just what they have did, they had uh, created this kind of CSS, bundle this, and have some classes, class name, and they provided to us. लो इसको यूज कर लो, हम तुम्हारे लिए स्क्रैच की जगह आई हैव क्रिएटेड समथिंग फॉर यू, और उसको कैसा यूज करना है, आई हैव क्रिएटेड अ डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंट में जाओ, सी व्हाट यू वांट, ओके, one by one, and you will understand like how we can how we can utilize it. So it's nothing extra thing, it is just this CSS which come with the bootstrap. But ये tried and tested है, किया हुआ है, तो हम लोगों का जो इश्यू होने का चांसेस है that would be lesser than our custom CSS. But again, if you use that thing, then you have to use your custom CSS also, because everything has not been defined in this bootstrap framework. I mean, there are few things which you have to customize by yourself, and for that you should have some knowledge of this custom CSS. Okay, तो मैंने क्या किया, what I did, I created one file and then a HTML file, and then what I have to do, I have to include the bootstrap CDN. Okay, so let's go to the starter portion. कॉपी कहाँ रखते हैं, जनरली हेड के अंदर, ऑलवेज हेड के अंदर हम लोग CSS का कोई भी लाइब्रेरी जब हम लोग इंक्लूड करते हैं, इट शुड बी ऑन हेड पोर्शन। ओके, तो हेड में यहाँ पे CSS रख दिया। सिंस हम लोग जस्ट CSS का काम करना चाह रहे हैं, नॉट द jQuery वर्क लाइक, तो इसलिए हम लोग जस्ट CSS का ही CDN रखा। बट आइडियली यू शुड हैव ऑल फोर थिंग। जो CSS का मेन है आपका, मीन को भी रखना पड़ता है, और तीनों JS का भी जो तीनों CDN है, इसे भी अपने इसमें रखना। वाई? बिकॉज कुछ जो प्रॉपर्टी जब आगे जाएंगे, एंड यू यूटिलाइज फ्यू थिंग दैट कम्स विद द फ्रेमवर्क, अगर आपके अंदर ये इंक्लूड नहीं होगा तो दैट विल नॉट वर्क। ओके, मॉडल फॉडल कह सकते हैं इस तरह के। ओके, तो मैंने क्या किया, मैं जस्ट यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ NC, और आपको हेलो वर्ल्ड दिखा देता हूँ। ठीक है, नथिंग एल्स, सेम थिंग। ओके, अपना ये मैं प्रीव्यू खोल लेता हूँ, आई गॉट दिस थिंग। यहाँ पे कुछ एक्सट्राग्रेमेंट नहीं हुआ, आसान सा चीज हो गया, जैसा था हम लोगों ने वैसा कर दिया। अब अगर हम लोग यही टेम्पलेट जो हम लोग इसमें बनाए थे, जो हम लोग CSS दे के बनाए थे टेम्पलेट्स को, अगर हम लोग उसी टेम्पलेट्स को अगर हम लोग चाहें कि नहीं मैं CSS से नहीं बनाऊंगा, मैं अगर बूटस्ट्रैप से बनाऊंगा, वाई? क्योंकि बहुत आसान है, आसान चीज है, हम लोग इतना टफ क्यों करें? वाई वी थिंक अबाउट दिस परसेंटेज? क्योंकि अगर कोई नया डिवाइस आ जाएगा, नया रिव्यू आ जाएगा, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो इसको करने के लिए व्हाट वी नीड, पहला जैसा हम लोग लास्ट टाइम में किए थे, कि हम लोग को वो डायग्राम चाहिए कि मेरा वेबसाइट हाउ इट शुड लुक लाइक, राइट? पहला मेरा माइंडसेट में होता है कि ये चीज मेरा कैसा दिखेगा। दिखने के लिए आपको बहुत सारा चीज मिल जाएगा। लेट मी शो समथिंग एल्स आल्सो। हाँ 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 हाँ, या so what happened in the company, either they give something like this, इस तरह का आपको एक डिजाइन दे देगा। ठीक है, okay, your page should look like this is called Figma design। ओके, ये आपको Figma डिजाइन दे दिया। दिस इज हाउ योर पेज लुक लाइक। ओके, और इसमें जब आप सर जाएंगे, या कैसे किया? जब प्रीवियस कोड पे जाइए, पहले हमने तो वो बेसिक HTML कोड तो इंसर्ट किया।
राइट राइट, मैंने हम इसमें देखिए कुछ नहीं किया, जस्ट मैंने बेसिक एचटीएमएल कोड में जा करके टॉप में आपका बूटस्ट्रैप डाला और नीचे आपका ये तीनों आपका जेएस डाला, ठीक है। जेएस इज ऑप्शनल, आप डाल भी सकते हैं नहीं भी डाल सकते हैं। एंड आई गॉट दिस कोड फ्रॉम दिस बूटस्ट्रैप लाइब्रेरी ओनली, ओके। इसका लाइब्रेरी में एक हेलो वर्ल्ड का दे दिया है, तो आई यूज इट। बूटस्ट्रैप क्या हर वक्त हेड में ही डालना जरूरी है? हाँ, कोई भी आप सीएसएस का जब काम करेंगे, एनी सीएसएस आपका फाइल, आपका कस्टम सीएसएस भी होगा, इट शुड बी ऑन हेड, क्योंकि सबसे पहले वही लोड होगा तब आपका डिजाइन अच्छा लगेगा, नहीं तो क्या होगा वो प्रॉब्लम करने लगता है। वो आपका जब जब आपका एचटीएमएल लोड होगा, इट विल बी क्रैंकी, वो टेढ़ा मेढ़ा होके लोड होगा। एंड इफ यू हैव दिस थिंग ऑन द टॉप, देन सबसे पहले आपका जो एचटीएमएल लोड होता है, इट लोड हेड फर्स्ट, ओके। तो सबसे पहले आपका डिजाइन आपका ब्राउजर समझ गया, एंड बेस्ड ऑन दैट जब आपका एचटीएमएल लोड होगा, अगर आपका ये कनेक्शन स्लो भी हो इंटरनेट, इट विल नॉट मेक योर वेबसाइट क्रैंकी। मीन कभी कदा देखें कुछ कुछ वेबसाइट जब लोड होता है तो टूट फूट करके फिर वो इकट्ठा मिल करके एक होता है, राइट। तो देयर द प्रॉब्लम विद दैट वेबसाइट इज दे हैव यूज्ड सीएसएस ऑन डिफरेंट प्लेसेस। और अगर आप हेड पे रख दें, तो जब भी ये ब्राउजर में लोड होता है कोई एचटीएमएल, सबसे पहले वो आपका हेड को लोड करता है, तो आपका डिजाइन पहले लोड हो गया। एंड जब उसके बाद जब वो बॉडी को जब वो रीड करने लगता है, तो H1 के हिसाब से वो अपना डिजाइन को मॉडिफाई कर देता है, पेज आपका डिजाइन वाइज में ही लोड होता है, ठीक है। टू मेक योर पेज लुक लाइक गुड ऑन फ्रॉम द फर्स्ट गो ओनली ऑल्सो, ओके। तो इसलिए ये डाला। अच्छा, तो जब भी आपको डिजाइन मिलता है, आपको क्या किया जाता है, इस तरह का आपको एक फिग्मा डिजाइन दे देता है, ठीक है। इट कंटेन एवरीथिंग, यहाँ पे आपका सारा चीज कंटेन करा रहेगा। कैसे क्या रहेगा, यहाँ आप देखेंगे, आप जब भी ये सबको होवर करेंगे, आपको सारा ग्रुप मिल जाएगा। यहाँ आपको विथ बता देगा कि अच्छा ठीक है, ये विथ 1440 के लिए आपका हाइट इतना होना चाहिए, ये कलर्स होना चाहिए। इस तरह से अगर हम लोग देखेंगे, तो हम लोग अपने डिजाइन को अपने दिमाग में हम लोग ये कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। यहाँ से हम लोग देख करके ये भाई, यहाँ पे हम लोग देख करके क्या विथ है क्या नहीं है, वो हम लोग समझ सकते हैं। कहाँ गया सर, रीलोड दिस थिंग, ओके। तो यहाँ देखिए, आपको देखिए सारा आपको बता दे रहा है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दिस आप डिसाइड करेंगे कि आपका क्या किस जगह कितना बड़ा होना चाहिए। ये देखिए, ये जैसे विड्थ बता दिया क्या 140 बाई 78 का होना चाहिए। इसका टॉप में ये स्पेस होना चाहिए, ये कलर होना चाहिए, राइट। अगर हम ये वाला हिस्सा का देखेंगे, तो ये वाला हिस्सा का ही बता दे रहा है कि ये इतना विथ होना चाहिए। ये हिस्सा का देखेंगे, तो सबसे पहले आपको इससे आपको पहले आपको अपना वेबसाइट्स को कैसे ब्रेक करना है वो सोचना पड़ेगा, राइट। ये देखिए, ये अगर 640 में ये 610 होगा, तो अगर आप गौर से देखेंगे, तो यहाँ से आपका वेबसाइट जो है 20 से एक ब्रेक करके किया होगा शायद। हाँ, ये देखिए, मिडिल में ये हाफ हो रहा है, ये हाफ हो रहा है, ये दो हिस्से में टूट रहा है, ये लाइन हो रहा है, ये भी देखिए, ये हाफ हो रहा है, ये हाफ हो रहा है। तो इस तरह से आपका एक वेबसाइट कैसे ब्रेक हो रहा है, आपको फिग्मा दे देगा, बेस्ड ऑन दिस फिग्मा आपको डिजाइन करना है। अब हम लोग जब पहला देखे थे, तो उसमें हम लोगों का क्या था कि ये पूरा लाइन है। अब आप उससे तो समझ में आ रहा है, ये पूरा एक रो होगा, उसके हिसाब से ये तीन चार हिस्सा में ब्रेक किया होगा। ये एक हिस्सा, ये दो हिस्सा, फिर यहाँ पर का ये एक हिस्सा, उसके बाद ये एक पूरा हिस्सा होगा। अगेन ये दोनों जो हिस्सा है, ये 50-50 में ब्रेक किया हुआ है, ये हिस्सा फुल है। तो इस तरह से हम लोग अपना रो कॉलम को हम लोग सेट कर सकते हैं, ठीक है। हम कॉम्प्लेक्स में नहीं जा रहे, हम फिर से सिंपल में जा रहे हैं। बट आपको पहले ये फिग्मा डिजाइन से आपका मेन स्ट्रक्चर है, अंदर कंटेंट छोड़ दीजिए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कंटेंट, बट मेन स्ट्रक्चर आपका क्या हो रहा है, ये वाला जो हिस्सा हो रहा है, दैट हैज टू पोर्शन, राइट। ये फुल में से 50% ये 50% ये, यहाँ पर भी ये सारा 50-50% करके ढुक रहा है। ये भी 50-50% हो रहा है, ये आपका फुल 100% हो जा रहा है, राइट। 100% के अंदर भी ये जो हिस्सा जो आपका है, यहाँ पर आपका 25% करके कुछ कुछ ले रहा है।
तो इस तरह से आपको पहले आपको अपना डिजाइन किस तरह से जा रहा है उसका स्ट्रक्चर, अंदर का कंटेंट नहीं, स्ट्रक्चर आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा। इसलिए आपको पहले आपको इस तरह का फिग्मा दे देगा, इसमें सारा डेफिनेट सारा चीज लिखा रहेगा कि किस तरह का आपका क्लास होगा, क्या विथ होगा, क्या हाइट होगा, ठीक है, क्या चेंज होगा, क्या फॉन्ट यूज करना है, क्या कलर यूज करना है, सब चीज आपको दे देगा, एवरीथिंग। बट आपको आपको कलर फलर टेक्सटाइल आपको वो रखना है, बट ये कैसे लाना है ये आपको खुद समझना पड़ेगा। अब लाने से पहले पहले आपको इसका बेयर बॉन्ड स्ट्रक्चर को खड़ा करना पड़ेगा। व्हाट्स योर पॉइंट? यस। समझ में आ गया क्या बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है। तो अगर हमको वेबसाइट बनाना है, पहले हमको सोचना पड़ेगा कि मेरा वेबसाइट में क्या होगा। सेम लास्ट की तरह, ये लास्ट में कौन जैसे सी? किए थे, ये जब भी आप कभी किसी भी वेबसाइट पे काम करेंगे, आपको हमेशा इस तरह का एक फिग्मा डिजाइन मिल जाता है। ये डिजाइन है जो डिटरमाइन करता है आपका वेबसाइट कैसा होगा। क्योंकि जब आपसे जब कोलैबोरेशन होता है, बात किया जाता है कि आपको ये वेबसाइट बनाना है, तो कैसा बनाना है, उसका कलर क्या होना चाहिए, ठीक है, क्या फॉन्ट होना चाहिए, कैसा डिप दिखना चाहिए, तो इस तरह से आपको एक डिजाइन बना के दे देता है। ये आपका यूएक्स टीम आपको एक डिजाइन बना के दे देगा कि मेरा, आप जो वेबसाइट जो काम करेंगे, इट शुड लुक लाइक दिस। इसमें आपका ये टॉप का पोर्शन का ये हाइट होना चाहिए, ठीक है, इसमें आपका ये विथ होना चाहिए, इतना हाइट होना चाहिए, ये मतलब बीच का हिस्सा मेरा फुल विथ होना चाहिए, ये दोनों मेरा 50-50 होना चाहिए। बीच में देखो कुछ स्पेस है, यहाँ देखोगे आपको स्पेस स्पेस सब चीज, एवरीथिंग आपका डिटरमाइन किया रहेगा कि पैडिंग है क्या है नहीं है, आपको सब चीज यहाँ बन के मिल जाता है, ठीक है। आपको जस्ट ये सारा चीज को सही से आपको यूज करना है। मीन मीन आपको डिजाइन इस तरह से करना है कि ये सारा चीज जो है आपका फुलफिल हो जाए। तो इज बेस्ड ऑन दिस थिंग कि ये जो मेरा डब्बा बन रहा है, ये डब्बा मेरा पूरा हुआ और ये डब्बा मेरा इतना नीचे है, तो इस क्यों नीचे, कितना विथ होगा, क्या साइज होगा, इसका सब चीज देखो दिया हुआ है। राइट, यहाँ पे देखो एक और ये है, इमेज है, इमेज का क्या साइज होगा, 21/100, एवरीथिंग दिया हुआ रहेगा। आपको इसके हिसाब से आपको अपना वेबसाइट को डिजाइन करना पड़ता है, ठीक है। एवरीथिंग है, देखो कहीं भी क्लिक करोगे उसका क्या विथ है, क्या हाइट है, क्या टेक्स्ट है, देखो ये जो बॉक्स बन रहा है इसका क्या हो रहा है, ये इमेज है, इमेज का क्या विथ है, क्या हाइट है, आपको सारा आपको ये फिग्मा डिजाइन से आपको मिल जाता है। लेकिन आपको बेस्ड ऑन दीज थिंग्स आपको सर अपना एस्टिम, हाँ बोलिए। सर ये बूटस्ट्रैप सीखने के बाद हम मतलब एक प्रोजेक्ट बनाएंगे क्या बूटस्ट्रैप यूज करके? हाँ, बूटस्ट्रैप यूज करके बनाएंगे। ठीक है सर, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए जो लास्ट टाइम में हम लोगों ने किया था, देखते हैं कि नहीं। लास्ट टाइम में क्या किया था? सर बोल रहा हूँ कि टूल कौन सा है जो आपका, ये पेंट है, एमएस पेंट? हाँ, पेंट है। तो ये हो गया। अच्छा, अच्छा चलिए, लास्ट टाइम में जो हम लोगों ने वेबसाइट बनाया था उसको ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या है, ठीक है। हाँ, ये था, देख लेते हैं ये था कि कोई और था। यही था। कॉपी का, कॉपी, लास्ट टाइम हम लोगों ने ये बनाया था, ये बनाया था कि कुछ और था, ये ऐसा लग रहा है, क्यों लग रहा है, समझ में आ गया। ये हम लोगों ने कुछ बैकग्राउंड दिया था, ये हटा देते हैं, ठीक है, तो ज्यादा बेटर है। ठीक, ओके, लेट इट बी। नहीं, ये नहीं बनाया था ना लास्ट, एक्चुअली मैंने आज, ये था क्या, नहीं ये तो ये, आप लोग रिमेम्बर है लास्ट में क्या फाइल, ये था,
ठीक है, सपोज करते हैं। यहाँ से ब्राउजर में ओपन कैसे करते हैं, तो शॉर्टकट है आपको याद है? तो दिक्कत हो जाता है, भूल जाते हैं। चलिए, अगर हम लोगों को ये अगर वेबसाइट बनाना है, ठीक है, दिस वेबसाइट अगर आपको बनाना है किसमें, आपका जे क्वेरी ये बूटस्ट्रैप को लेकर के, तो किस तरह से करेंगे? तो सबसे पहले अपना माइंड को अपना सेट करना है कि मेरा जो ये वेबसाइट जो ब्रेक हो रहा है, इसका मेन स्केलेटन क्या होगा। अगर आप देखेंगे कि टॉप में कोई पोर्शन है, राइट, देन मिडिल में कोई पोर्शन है एक, माने अगर हम इसको पेट में समझना चाहें तो मेरा टॉप में कोई पोर्शन है, ठीक है। सेकेंड थिंग, मेरा एक मिडिल में कुछ पोर्शन है। तो इस तरह से क्या होता है, वो लोग फिग्मा आपको बना के देते हैं। अच्छा, आपका वेबसाइट किस तरह से काम करेगा, दी ज्यादा थिंग्स कि ये आपका विथ होगा, ये आपका लेंथ होगा, वो सारा चीज आपको फिग्मा में बना के देगा, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, कि ये फिग्मा में आपको सारा चीज बना के दे देगा, यूएक्स वाले। तो हम लोग भी चलिए कुछ फिग्मा अपने हिसाब से बना लेते हैं कि मेरा स्ट्रक्चर क्या होगा। ये आपका हेडिंग होगा, मैंने डाल दिया, ठीक है। देन क्या था, देन अगर आगे बढ़ते हैं कि हेडिंग हो गया, फिर क्या देखते हैं कि अच्छा ये दोनों बॉक्स टाइप का है, ये दोनों हिस्सा है, ये एक हिस्सा पूरा नीचे गया, राइट हिस्सा यहाँ गया, ठीक है। तो अगर हम इसको तोड़ना चाहें तो ये मेरा कितना परसेंटेज लग रहा है, देखिए यहाँ तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप इसमें देखेंगे तो आपको विथ दे देता है। तो थ्रू दिस वी कैन आइडेंटिफाई। तो अच्छा, पूरा का जो विथ है, सॉरी फुल जो विथ है 1.40 दिया, और ये जो विथ है आपका 7220 है, माने ये हाफ होगा, 50% होगा, राइट। तो आप यहाँ से, सॉरी, अब इससे अगर देखेंगे, वेबसाइट से अगर देखें, अगर वेबसाइट से कॉपी कर रहे हैं कि चलो हम वेबसाइट से बनाना चाह रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का विथ आपका क्या होना चाहिए, और ये हम कह सकते हैं कि ये आपका 66% इतना होगा, या 75%, और ये आपका 25% होगा, करेक्ट। यहाँ से यहाँ तक कितना कितना परसेंटेज होना चाहिए? अगर ये पूरा, अगर हम ये ब्लैक को पूरा 100 करें, तो यहाँ तक कितना होना चाहिए, ये वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक? कोल 9 के अराउंड। हाँ, मैंने हम 75 बोल सकते हैं, 75। और कोल जब 12 जब करता है तो ये 9 होना चाहिए, ये 9 और ये 3। हम लोग अपना डिजाइन भी इस तरह से सोच लेते हैं, फिर अंदर का चीज को हम लोग फिर बड़ा करेंगे। तो मेरा बेसिक स्ट्रक्चर में दिस थिंग्स आ रहा है, दिस, और उसके बाद मेरा एक फुटर आ रहा है। ये तो मेरा बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। अब अंदर में भी जब देखा कि एक मेरा कोल लाइन के 9 के तरह जा रहा है, ठीक है, और ये मेरा कोल 3 के तरह जा रहा है। दिस इज माई बेसिक स्ट्रक्चर, ये मेरा बेयर बोन स्ट्रक्चर हो गया, राइट। अगर हम इसे अगर हम अच्छे से बना लेंगे, और ये अगर मेरा रिस्पॉन्सिव ठीक से रहेगा, तो मेरा ये हिस्सा लमसम कंप्लीट है। अब देखते हैं क्या, अच्छा, दिस थिंग अगेन गेट रिपीटेड, राइट, ये हिस्सा अगेन रिपीटेड हो रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार भी। तो रिपीटेड के लिए क्या करेंगे, रिपीटेड डाल देंगे उस कोल के अंदर, फिर हम लोग इसको और अच्छा से करेंगे। लेकिन अगर हम देखें तो ये इस तरह से मेरा कोई हिस्सा इसके अंदर का रिपीट हो रहा है, राइट, ये भी इस तरह से ये वाला हिस्सा रिपीट हो रहा है। तो मेरा जो स्ट्रक्चर होना चाहिए HTML का, वो समथिंग लाइक दिस होना चाहिए। आप इस, अभी हम आपको इसके लिए ये बताएं, इससे एडवांस चीज होता है आपका ये फिग्मा डिजाइन, जो आज इंडस्ट्री में यही यूज होता है। तो ये बोलिए या ये बोलिए, इससे भी आपको इस तरह का आपको स्ट्रक्चर मिल जा रहा है कि आपका विड्थ क्या होगा, हाइट क्या होगा। तो यहाँ से जब आप इस तरह से अगर आप ब्रेक कर सकते हैं, यू कैन मेक द डिजाइन इजिली। आपका डिजाइन ब्रेक होने का चांसेस कम होगा if you break everything like this way, okay। ट्रेडिशनल वे है, लेकिन अच्छा वे है, इसमें अगर हम लोग क्लास करेंगे तो हो जाएगा। अब हम लोग कुछ चीज आगे बढ़ते हैं कि अगर हम लोग को लाइन चाहिए होगा तो हम लोग लिखेंगे कॉल, ठीक है। जैसे हमने पहले बताया कि कॉल क्या करता है कि इस रो आपको
प्रोवाइड कर देता है। तो सॉरी रो कर देंगे अगर हमको पूरा लाइन चाहिए होगा। तो अब हम इस डिजाइन में देखेंगे, ये एक रो है, ये एक रो है, राइट, ये वाला दूसरा रो है, उसके अंदर ये वाला भी एक रो है पूरा बड़ा ऐसा, उसके अंदर ये जो बक्सा जो क्रॉस कर रहा है इसको, दीज आर कॉल्स, राइट। ये भी एक रो और एक कॉल के अंदर है, ये भी एक रो और एक कॉल के अंदर है। तो इस तरह का हम लोग डिजाइन को अपना करके शुरू स्टार्ट करते हैं, देखा कर सकते हैं कि नहीं। और बिफोर स्टार्टिंग रोज एंड कॉल्स कुछ उसका चीज हम लोग देख लेते हैं कि भाई ग्रिड सिस्टम में हम लोग क्या क्या चीज को अप्लाई कर सकते हैं और इससे क्या क्या चेंज आता है। हाँ सर ये वाला आप एक बार जाएंगे डिजाइन में। हाँ ऊपर सबसे ऊपर वाला जो है वो एक रो है, ठीक है, उससे राइट। नीचे एक और रो है, दो रो है, ठीक है। देखिए तीसरा, हेलो, देखिए आप इससे समझिए, डिजाइन से समझिए। पहला बात हम लोग नहीं, ये नहीं, कहा गया, ये डिजाइन हम लोग करना चाह रहे हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पर हाँ देखिए, ये हिस्सा यहाँ से, ये हिस्सा एक एक बॉक्स है, यहाँ से आता है एक बॉक्स है, ठीक है। यहाँ देखिए लाइट, हल्का लाइट हो रहा है, ये एक बॉक्स है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये ऊपर वाला हिस्सा को एक रो समझा, एक बॉक्स समझा, उसके लिए क्या किया, ये टॉप में एक जगह दे दिया, ठीक है। इसे हम लोग हेडर कहेंगे, जो बोलिए, लेकिन एक डिजाइन के हिसाब से ये एक जगह दे दिया, ठीक है। अच्छा, फिर सेकंड ये हिस्सा चाहिए, ये हिस्सा हमको चाहिए ना, ये भी हिस्सा। तो सेकंड के लिए भी एक रो दे दिया, ठीक है। हम लोग कुछ नहीं कर रहे, जस्ट अपना काम को आसान करने के लिए हम लोग यहाँ पे ये दूसरा हिस्सा दे दिया, ठीक है, ताकि हम ये लोग वाला समझ। भी हेडर, देखो टॉप वाला आपका हेडर है, ये क्या उसके बात है, नीचे वाला, ठीक है, ये आपका हेडर पोर्शन हो गया, ठीक है। ये हिस्सा आपका हो गया लिंक पोर्शन, ओके, जो मेरा लिंक दिख रहा है, ठीक है। ये जो बॉक्स बन रहा है ये वाला, ये मेरा बन गया मेरा लेफ्ट पैनल, ठीक है। लेफ्ट पैनल माने ये जो लेफ्ट पे जो मुझे दिखेगा, राइट। और उसके बाद जो ये जो बड़ा वाला बॉक्स जो दिख रहा है, अ, ये जो बड़ा वाला, ये सेकंड वाला जो बड़ा वाला बॉक्स दिख रहा है, ये मेरा राइट पैनल हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर जो छोटा छोटा बक्सा दिख रहा है, बॉक्स दिख रहा है, दैट इज बेस्ड ऑन आवर डिजाइन। माने कि अब देखिए इस ये राइट पैनल में ये कुछ चीज रिपीट हो रहा है, ये एक चीज है, फिर नीचे जाकर फिर वही चीज आपका रिपीट हो रहा है, ये 10 बार हो सकता है, 100 बार हो सकता है। राइट पैनल में भी ये एक चीज है, फिर ये रिपीट हो रहा है, इस तरह से रिपीटेशन हो रहा है। कोई भी वेबसाइट आपका इसी तरह से ही काम करता है, किसी का भी वेबसाइट जाओगे, लेकिन उसका बेसिक कोई स्ट्रक्चर होता है, कहीं मेन्यू होता है, कहीं हेडिंग होता है, एंड देन कंटेंट होता है, कंटेंट के बाद कहीं से कुछ लिंक आता है, ये होता है, और वो रिपीट होता रहता है इतना में। फिर इसके बाद उसका इंटरनल काम स्टार्ट होता है, ठीक है। ये बेसिक स्ट्रक्चर था, तो मैंने इस तरह से बेसिक स्ट्रक्चर अपना माइंड में समझ लिया। ये कुछ नहीं, ये कॉपी में बनाओ, जिसमें बनाओ, ताकि आप क्या कर रहे हो वो आपको समझ में आता रहे कि हमको करना क्या है, व्हाट वुड बी माय स्टेप एंड हाउ आई विल अचीव दिस थिंग। अचीवमेंट के लिए ये कर लेते हैं, लेकिन अभी के टाइम में वी यूज टू गेट दिस काइंड ऑफ फिग्मा, ये आपको उस तरह का डायग्राम की जगह आपको इस तरह का फिग्मा दे देगा। तो इसको भी करके आप समझ सकते हैं कि अच्छा मेरा लेंथ ये है, विड्थ ये है, हाइट इतना होगा, ये मेरा डिव ऐसे से घूर रहा है, यहाँ सब चीज आपको मिल जाएगा। इफ यू होवर एंड एडिट एवरीथिंग, यू विल गेट टू नो एवरीथिंग। लाइक ये पूरा एक डिव है, राइट, ऊपर से नीचे तक एक डिव है जिसका हाइट विड्थ ये है। हाइट तो डायनेमिक आता है बहुत सारा, इसलिए उसके बाद ये वाला डिव भी है जिसका हाइट विड्थ ये है। तो देखो ये एक्चुअली यही चीज है ना, यही चीज बना के इसको थोड़ा सा सुपीरियर वे में, अच्छे वे में आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। चलिए, नीचे वाला फुटर है। नीचे वाला फुटर है, राइट, नीचे वाला मेरा फुटर है, एज पर दिस डायग्राम, ठीक है, एज पर दिस पेज, रिस्पॉन्सिव पेज, नीचे वाला मेरा फुटर है। तो हम लोग अच्छा, करेंगे कैसे,
एक चीज देखिए, हम्म, एक चीज देखिए, वो वाला आपने एग्जाम्पल वेबसाइट जो आपने खोला हुआ है, ओपन किया हुआ है, ठीक है, हम्म, वहां पर आपका राइट पैनल और लेफ्ट पैनल का जगह देखिए। हाँ, राइट पैनल में हम्म, आइए जरा। अच्छा देखिए, राइट पैनल एक एक बड़ा जगह लेके बैठा हुआ है, ठीक है। लेफ्ट पैनल कर, का दो डिवीजन है, ठीक है, एक अपर डिवीजन, एक लोअर डिवीजन। हम्म, अपर और लोअर को अगर हम मतलब कैलकुलेट करें, तो देखिए इसका जो हाइट है, ठीक है, आपका राइट पैनल का जो हाइट है, वो आपका लेफ्ट पैनल का हाइट का बराबर नहीं है। हाँ ठीक है, वो क्योंकि क्योंकि वो देखो वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है। जैसे यहाँ पे भी देखो हम छोटा बड़ा किए ना, हाइट बराबर नहीं होगा, बिकॉज ये दो चीज देखो, बाहर बाहर का हम लोग फिक्स कर लिए, बाहर बाहर का हम लोग परसेंटेज करेंगे। अब इंटरनल उसके अंदर में क्या होगा वो खुद डिटरमाइन करेगा। अब जब इसमें जब हम रो देंगे, अब हम जब इसमें रो देंगे, तो वो इस इस स्पेस को, इस स्पेस के हिसाब से वो रो अपना डिटरमाइन करेगा, ठीक है। रो जनरली हम लोग जब बात करते हैं कि रो माने पूरा लाइन, लेकिन यहाँ पर जब रो का बात करेंगे तो रो माने ये स्पेस जिसके अंडर में वो है, वो स्पेस उसका उसका रो होगा। फिर अगेन इस स्पेस को अगेन वो 12 हिस्से में तोड़ देगा, कॉलम उसको 12 हिस्से में तोड़ देगा। एवरी रो इररेस्पेक्टिव ऑफ द स्पेस, अगर हम रो के अंदर कॉलम देंगे, कॉलम को हम लोग 12 इक्वल हिस्से में तोड़ सकते हैं। कंसेप्ट यही है। और रो क्या लेगा, इस बूटस्ट्रैप में रो लेगा उस जो इस कंटेनर के अंदर जो स्पेस के अंदर वो है उसका टोटल लेंथ। तो ये सारा चीज डायनेमिक बनेगा, और एवरीथिंग आप माने कि मोबाइल के हिसाब से, वेबसाइट के हिसाब से अपना चेंज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, पहले चले बूटस्ट्रैप थोड़ा सा देखते हैं, फिर कुछ कुछ चीज क्लैरिटी आएगा। तो हमने जब बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम देखते हैं, ग्रिड बोलता है कि अच्छा हम लोग, सबसे पहले बात है कि ग्रिड जो है वो आपका मोबाइल, अगर आप एक से ज्यादा क्लास देते हैं, जो एक क्लास आपका इफेक्ट इफेक्ट आपका लैपटॉप में करेगा, दूसरा बड़ा स्क्रीन में करेगा या मोबाइल में करेगा, तीनों अगर क्लास है तो बूटस्ट्रैप हमेशा प्रेफरेंस मोबाइल वाला क्लास को देगा, ठीक है। तो अब इसमें जैसे मैंने कहा कि अगर हम लोग रो के अंदर हम लोग अगर क्लास दे देंगे, और क्लास में कॉल एसएम किया, एसएम मीन स्मॉल स्क्रीन, तो इसमें आपका 5 तरह का कॉल आता है, कॉलम आता है। एसएम छोटा स्क्रीन के लिए एसएम, एकदम छोटा स्क्रीन के लिए एक्सेस, ठीक है। ये देखिए, एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है। तो एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए एक्स एस यूज करते हैं, एक्स एस, स्मॉल के लिए एस एम, मीडियम के लिए एम डी, लार्ज के लिए एल एल जी, और एक्स्ट्रा लार्ज के लिए एक्सएल। तो ये क्या बोलता है, अगर हम लोग कुछ नहीं दिए तो वो सबसे छोटा ले लेता है, ठीक है। और सारे का देखिएगा, सारे का जो आपका कॉलम हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, डेट इज 12, 12 के हिस्से में कर सकते हैं। अभी नीचे एक लिखा हुआ है कि भाई इसको नेस्टेबल कर सकते हैं, माने एक के अंदर दूसरा डाल सकते हैं। हाँ, हम लोग नेस्टेबल कर सकते हैं। नेस्टेबल माने क्या हुआ कि ये आपने जो एक कॉलम बनाया, अब अगेन इसके अंदर ये रो था, अगेन इसके अंदर एक और रो हो सकता है, हाँ हो सकता है। और अगेन ये जो रो होगा यहाँ से यहाँ तक वाला हिस्सा, यहाँ से यहाँ तक वाला हिस्सा, ये अगेन कॉलम, ये ग्रिड सिस्टम का ये प्रिंसिपल को फॉलो करेगा कि हम लोग ये ग्रिड को अगेन 12 हिस्से में तोड़ सकते हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ द साइज, कितना बड़ा साइज था वो मैटर नहीं कर रहा, ठीक है। अगेन ये वाला हिस्सा भी, अगर ये रो है इसके अंदर वो रो डिफाइन करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा रहेगा, और अगेन इसको फिर हम लोग 12 इक्वल हिस्से में कॉल के हिसाब से तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज इसका, ये नेस्टेबल कहने का मतलब है। और कॉलम को हम लोग ऑर्डरिंग कर सकते थे, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा कि हम लोग इसका विड्थ देने के लिए यहाँ पर कॉल उस ग्रिड में हम लोग 2, 4, 6, 8 इस तरह से दे देंगे, बेस्ड ऑन आवर परसेंटेज के हिसाब से दे देंगे। अब जब ये कॉल यूज करेंगे तो हम लोग जब मीडिया क्वेरी उस समय यूज किए थे, वो मीडिया क्वेरी इसमें ऑटोमेटिकली आ जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग नहीं देते हैं, अगर हम लोग कॉल नहीं देते हैं, तो बूटस्ट्रैप इतना इंटेलिजेंट है कि वो लोग क्या करेगा, वो अपने हिसाब से आपको स्पेस को ब्रेक करके दे देगा। माने देखिए यहाँ रो लिखे और यहाँ दो तो कॉल लिख दिए, तो बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क इतना इंटेलिजेंट है, वो क्या करेगा, इसको 50-50% दे देगा, क्योंकि आपका एक हिस्से को दो आदमी में डिवाइड करना है, तो 1:1 करके दोनों को प्रोवाइड कर देगा,
हम लोगों ने यहाँ पर क्या करना, कितना ग्रिड यूज करना है वो नहीं लिखा, लेकिन बूटस्ट्रैप ऑटोमेटिकली ये चीज कर देगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग इसको 3 हिस्से में डिवाइड कर दिए, लिख दिए, तो बूटस्ट्रैप क्या करेगा, इसको 3 हिस्से में डिवाइड कर देगा। ये फ्रेमवर्क उसका थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा वो इंटेलिजेंट है कि अगर हम नहीं देंगे तो आप इक्वल हिस्से में दे देगा, लेकिन अगर हम लोग डिटरमाइन कर देंगे तो वो उसको उतने हिस्से के हिसाब से करेगा। ठीक है, जैसे ये देखिए, पहले में क्या लिखा, कुछ नहीं, कॉल लिखा, दूसरे में कॉल 6 लिखा, और तीसरे में कॉल लिखा, राइट, एक रो के अंदर। तो क्या करेगा, ये जो बीच वाला हिस्से को 12 में से 6 दे देगा। 6 माने क्या हुआ, 50% दे देगा। बाकी जो बचेगा वो आधा इसको आधा इसको दे देगा, माने ये दोनों 25% और ये 50% में डिवाइड हो जाएगा। करेक्ट सर जी। सिमिलरली अगर इसको 5 दे दिया तो 12 में से 5 जो परसेंटेज होता है वो उतना परसेंटेज इसको दे देगा, बाकी जो 7 बचा माने 3.5 इसके लिए, 3.5 इसके लिए। इस तरह से उसको रिस्पॉन्सिवनेस प्रोवाइड कर देगा। ओके, अगर कोई चीज को हम लोग को सेंटर में लिखना है तो ये इस तरह का क्लास एक दिया हुआ, जस्टिफाई कंटेंट एमडी सेंटर। तो जो कंटेंट है वो आपका हमेशा मिडिल में रहेगा। ये सारे का कंटेंट देखिए मिडिल में नहीं है, राइट, मिडिल में नहीं है, ये आपका जनरली लेफ्ट को फॉलो करता है, लेकिन आपको मिडिल में लाने के लिए ये क्लास दे सकते हैं। अच्छा, इसमें मैं अच्छा, तो इनसे जो पता चला, एक तो होता है स्केलेटन होता है, वो कितना रो और कितने मतलब कॉलम्स में डिवाइड होगा, ये पहला मतलब कैलकुलेशन हो गया। ठीक है, का जो कंटेंट है, ठीक है, वो आप एक रो और एक कॉलम का सेगमेंट में अगर आप मतलब उसको थिंक करेंगे तो वो कहाँ बैठेगा। ठीक है, उसके बाद तो उसमें आपका जस्टिफाई क्या करेंगे या नहीं करेंगे, हाँ, वो वो उसका क्लास लगेगा, उसके बाद सारा क्लास लगेगा। ठीक है, अब ये देखिए, मेन बात आपको ये कहना था कि अगर अब हम लोगों ने कभी कभार क्या होता है कि अगर हमको रिस्पॉन्सिव बनाना है, कि आप कोई भी वेबसाइट अगर देखते हैं, सपोज करता हूं मैं एक वेबसाइट खोल लेता हूँ। ठीक है, कौन सा खोल लो, चलिए, और फेसबुक, जीमेल भी नहीं, कोई एक वेबसाइट का नाम बताइए सर जी, जो जनरल पर्पस के लिए हो। चलिए न्यूज वेबसाइट खोल लेते हैं। ठीक है, कौन सा, आज तक देखते, या बीबीसी खोल लेता हूँ। ये देखिए, ये आपका इसमें इस तरह से काम कर रहा है। ठीक है, अब इसको भी अगर आप उस ग्रिड सिस्टम से अगर आप तोड़ेंगे, नाउ यू कैन डिजाइन दिस आल्सो, राइट। क्या है ग्रिड में, पहला एक ऊपर में है, फिर मिडिल का पोर्शन में है, फिर अंदर में होने का जो होगा, ये आपका इस तरह से काम कर रहा है। अब ये सब ग्रिड को देखिए, अब जैसे ही अब हम इसको मोबाइल में देखना चाहेंगे, क्या होगा, मोबाइल व्यू। इसमें मेरा आ नहीं रहा है, क्यों। अच्छा, टूल्स में चला, ओके, यार रेस्पॉन्सिव नहीं है। हाँ, ये देखिए, वो डिजाइन आपका यहाँ पे चेंज हो गया, राइट। आप देखेंगे अगर कंटेंट को मिलाएंगे, लेट मी ओपन दिस, यहाँ पे ये फुल था, ठीक है, ये फुल है। यहाँ पे नीचे का कंटेंट देखिए, कुछ हाइड हो गया और कुछ क्या हो गया, ये सब चीज हाइड हो गया, राइट, ये सारा चीज हाइड हो गया। ये इसमें भी देखिए आपका कंटेंट दिखा रहा है, इमेज गैप हो गया, देखिए, राइट, नीचे जब जा रहे हैं तो कंटेंट आ रहा है, इमेज गैप हो गया, करेक्ट, ये चीज हाइड हो गया। अब यहाँ पर भी देखिए इमेज गैप हो गया, स्पोर्ट्स का सेक्शन में देखिए, स्पोर्ट्स का सेक्शन में देखिए, देखिए इमेज को गैप कर दे रहा है। यू कैन सी दिस थिंग। तो मोबाइल में हमको ऐसा दिख रहा है और ये हमको ऐसा दिख रहा है। तो इस तरह का हम लोग को रिस्पॉन्सिवनेस भी आपको मिल जाएगा। सारा हम लोग ग्रिड सिस्टम में ये सब चीज भी हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं।
बशर्त है कि हम लोग को पता होना चाहिए कि हम लोग को क्या करना है। ठीक है, यू गॉट माय पॉइंट। हम लोग क्या बताना चाह रहे हैं तुमको? किसी भी चीज का डिजाइन बनाना आसान है। आप अगर इस तरह ग्रिड को तोड़ लेंगे, इधर क्या परसेंटेज हो रहा है, और तब आपका मतलब गड़बड़ होने का चांसेस कम होगा। फिर इंटरनल ये इसका डिजाइन, ये इसका डिजाइन, वो सारा डिजाइन होता रहेगा। ठीक है, लेट मी, ओके, ये तो अलाइनमेंट है। आइए हम लोग रिस्पॉन्सिवनेस का देख लेते हैं क्या होता है। अच्छा, एक चीज इसके साथ आता है ऑफसेट। ओके, ऑफसेट भी याद रखिएगा। ऑफसेट माने कि किसी को छोड़ करके उसके बाद दिखाना। ओके, यहाँ जो लिख दिया हम लोग, पहले देखिए लाइन लिखा हुआ कॉल MD4 लिखा हुआ है, माने 12 में से 4 हिस्सा, माने 33% तुम यहाँ तक चले जाओ। राइट, फिर यहाँ पे देखो बीच में ये जो लिखा हुआ है कॉल MD4, ये जो लिखा हुआ है ऑफसेट 4, यहाँ ऑफसेट दे दिया, जो क्लास ऑफसेट दे दिया है ऑफसेट कर करके। MD4 माने क्या बोला है, अब 4, 12 में से पहला तो 4 ऊपर चला गया, फिर अब 4 छोड़ के उसके बाद का 4 को स्पेस ले लो, माने 33% छोड़ के फिर 33% में तुम दिखा दो। तो ये थोड़ा सा आप लोग डॉक्यूमेंट में जाओ, डॉक्यूमेंट एक बार देखना अच्छा से, तब समझ में आएगा कि हम लोग क्या करने चाह रहे हैं और इसका हम लोगों का किस तरह से काम चल रहा है। ठीक है, अच्छा, तीसरा बात अगर हम एक क्लास में चारों चीज अगर लिखेंगे, चारों क्लास लिख देंगे, जैसे यहाँ सब SM करके हिसाब से दिया हुआ है, लेकिन अगर हमको जैसे ये दिखाया है कि आपका वेबसाइट आपको मोबाइल में एक लाइन दिख रहा है, राइट, लेकिन यहाँ तो 3-3 लाइन था, ये सब लाइन हुआ कैसे, ऐसा कैसे हो गया? तो ये सब चीज हम लोग यहाँ पर बूटस्ट्रैप में मल्टीपल, ये कॉल का मल्टीपल क्लासेस, डिफरेंट क्लास को हम लोग ऐड करके कर लेंगे। तो हम आज जस्ट मेरा टाइम कम है, हम जस्ट बेसिक स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसमें क्लास देंगे और रिस्पॉन्सिवनेस आपको करके दिखाएंगे किस तरह से ये रिस्पॉन्सिव हो जा रहा है। नेक्स्ट क्लास में इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे, HTML CSS पेज दे करके, माने कुछ जिस तरह से BBC वाला जिस तरह से अपना क्लास को चेंज कर रहा है, कोई चीज को हाइड कर रहा है, कुछ को शो कर रहा है, वो हम लोग करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वो कल सुबह, कल जल्दी होगा, कल क्लास देखते हैं, कल करेंगे वो चीज। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्टेप तो हम लोग कर लिए कि हम लोगों ने अपना बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करने से क्या हुआ कि ये जितना भी यहाँ पर आपका लेफ्ट पैनल में जो भी आपको फीचर्स दिख रहा है, जो भी आपको कंटेंट, जो भी चीज आपको दिख रहा है, टेबल किस तरह से बनाना है, ठीक है, एवरीथिंग आपको यहाँ पर कंपोनेंट्स, ये पूरा कंपोनेंट्स को आप लोग, डिजाइन को आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक एक डिजाइन जाके देखना कि किस तरह से फॉर्म बना सकते हैं, किस तरह से टेबल बना सकते हैं, वो आप देख करके कर लेना। वो जब ये कराएंगे, जब ये रिएक्ट जेएस कराएंगे, देन आई विल मूव ऑन टू दोस थिंग। तो यहाँ पर हम लोग अपना काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले हम लोग क्या किया, ये डिजाइन देखा, डिजाइन मेरा ऐसा है, पहला मेरा एक तो मेन डिव है, उसके अंदर ये सारा चीज है। ठीक है, हमने क्या किया, एक तो मेन डिव कर लिया, डिव, राइट, क्लास दे दिया, कंटेनर डैश फ्रूट, हम कहीं जगह नहीं छोड़ना चाह रहे। ठीक है, तो दिस इज माय, ठीक है, ये आपका जगह इस तरह से ले लिया। ओके, चलिए ये मेरा मेन हो गया। अब क्या करेंगे सर, अब हम लोग जो अपने हिसाब से जो तोड़ना चाहता है कि ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा, तो दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, अब एक चीज होता है कि अगर आप देखेंगे तो कुछ कुछ वेबसाइट जो है ये पूरा स्पेस लेता है, राइट, और कुछ वेबसाइट आप देखेंगे तो कुछ जगह छोड़ के करता है। तो उसको आप लोग अपने हिसाब से आइडेंटिफाई कर लेना कि आप लोग का डिजाइन किस तरह से करना है, कि पूरा पूरा स्पेस लेना है। इसलिए मैंने कंटेनर फ्रूट दे दिया, ताकि जो भी मेरा स्पेस है वो मेरा पूरा स्पेस ले लेगा बॉडी का, कोई जगह छोड़ेगा नहीं, वो आप वे तो दे के स्पेस छोड़ सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, अपना डिजाइन पे गए, डिजाइन क्या, एक्चुअल जाना चाहिए फिग्मा पे, बट मेरे पास ऐसा कोई फिग्मा है नहीं तो मैं आपको सही से दिखा पाऊँ। मैं फिग्मा पे गया, अब उसके हिसाब से मुझे ब्रेक करना पूरा एप्लीकेशन को।
कि मेरा ये ऊपर में एक तो div होगा, ऐसा काम करेगा, नीचे कुछ होगा, इसके बीच में कुछ होगा, तो उसके लिए मैंने इस तरह का डिजाइन बनाया। ठीक है, तो पहला एक मेरा हेडर सेक्शन होगा, फिर लिंक सेक्शन होगा, फिर ब्ला 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 ब्ला। अच्छा, ये करने का बहुत तरीका है, आप उसको अदर्स वे में जा सकते हैं, लेकिन आज मेरा मोटो है कि मैं कुछ नहीं यूज करूंगा, मैं जस्ट ग्रिड सिस्टम यूज करूंगा। ग्रिड सिस्टम माने रोज एंड कॉलम से ही करूंगा। ठीक है, मैंने कहा कि ये हेडर सेक्शन हो गया, ये बॉडी सेक्शन हो गया, सॉरी, हेडर के बीच में एक मेरा लिंक है। ठीक है, ये मेरा लिंक सेक्शन हो गया, और मेरा ये बॉडी हो गया, ये मेरा फुटर सेक्शन हो गया। एनी क्वेश्चन है कि मेरा जो मेन सेक्शन है, मैंने अपना मेन सेक्शन बना लिया, हेडर सेक्शन, लिंक सेक्शन, बॉडी सेक्शन, फुटर सेक्शन। ठीक है, अब मेरा हेडर सेक्शन में है क्या? अब मेरा हेडर सेक्शन में जब मैं गया तो देखता हूँ कि मेरा हेडर सेक्शन में कुछ नहीं है, ये दोनों चीज है। ठीक है, तो मैं क्या करूँ, अब इस पेज पे लेते हैं, तो मैं क्या करूँ, हेडर सेक्शन में इसको मैं क्लास इक्वल टू कॉल देता हूँ कि भाई 100% तुम जगह ले लो। ठीक है, ओके। और क्या करता हूँ, यहाँ से एक तो चीज कॉपी करके के डेटा को यहाँ से कॉपी करके वहां पे डाल देता हूँ। ठीक है, नॉट दिस, सॉरी, कहाँ गया, कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, और ये मेरा बूटस्ट्रैप का टेम्पलेट है। तो मेरा ये हेडर से कॉल आया, कॉल से मैं ये डाल दिया। ठीक है, कुछ कुछ ऐसा लग रहा है, देख लेते हैं कि मेरा ये लग कैसा रहा है अभी। आ गया सर, इसका मैं शॉर्टकट भूल गया हूँ। सर, हाँ बोलिए सर। हाँ, वो आपका हेडर, बॉडी, फुटर हम्म, और से बाटा, हम्म, हेडर, लिंक, बॉडी, फुटर। ये देखिए, ये ऊपर का हेडर हो गया, ये आपका लिंक हो गया, ये आपका बॉडी हो गया, और नीचे आपका फुटर हो गया। ठीक है, अब क्या कर, ये तो मेरा हो गया। ठीक है, अब देखिए, इसके बाद भी अभी जब मैं इसको यूज करूंगा, तो मैंने बोला कि आप बेसिकली आपको सारा जिस तरह से बना हुआ है उस तरह से ही यूज करना है। ठीक है, बूटस्ट्रैप का यूज करना है, लेकिन बूटस्ट्रैप लगाने के बाद भी मेरा डिजाइन अगर मेरे इसके हिसाब से नहीं आता है, देन आई हैव टू यूज आवर CSS ऑल्सो। ओके, तो अगर हमको CSS भी लगाना है तो यहाँ पर मैं स्टाइल दे दूंगा। ये करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, मेरा काम बच जाएगा। ये तो गड़बड़ क्लास लेके है। अच्छा, पहले मैं स्ट्रक्चर तैयार कर लेता हूँ, फिर इस चीज डालेंगे। पहले स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं, फिर सब चीज डालेंगे। तो डाल लेंगे, तुम भी हट जाओ, तुम भी हट जाओ। ठीक है, पहले मेरा बेयर बोन स्ट्रक्चर तैयार हो जाए, फिर हम लोग क्लास डाल के डालेंगे। ठीक है, लिंक में भी क्या है, लिंक में भी अभी अभी कुछ ठीक है, लिंक में भी इसी तरह का है। लिंक में भी मेरा लिंक के लिए भी मेरा ये हो गया। ठीक है, अब इसका CSS हम बाद में डालेंगे, पहले हम लोग का बेयर बोन कुछ स्ट्रक्चर तैयार हो गया। ठीक है, अच्छा ये देख रहे हैं कि अच्छा ये तो मेरा सेंटर में है, टेक्स्ट लाइन सेंटर में है, तो यहाँ देखिए ग्रिड सिस्टम में आपको अगर सेंटर में देने के लिए यहाँ पे आपको क्लास दे दिया है। फिलहाल हम वो डाल देंगे, फिर इसको चेंज कर देंगे। ठीक है, बाद में हम लोग चेंज कर देंगे। ये सेंटर के लिए आपका यहाँ पे दिया है, कहाँ गया सेंटर, टेक्स्ट सेंटर, ये रहा, जस्टिफाई सेंटर। ठीक है, ये MD यूज किया ताकि कोई बात नहीं।
हमको लगा था कि गड़बड़ होगा रो में। अच्छा, तो हम लोग एक स्टेप थोड़ा सा फॉरवर्ड गए, बाकी सबको अभी गड़बड़ रहने देंगे या रहने देते हैं, बाद में इसका CSS डालेंगे, ठीक है। पहले हम लोग बेरबल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। पहला चीज हो गया। दूसरा चीज क्या है, मेरा लिंक में क्या होगा, लिंक में अगर हम लोग देखते हैं तो लिंक में मेरा 1 2 3 हिस्सा है और ये 4 हिस्सा है। अब आप बताइए ये चीज लिंक जो है हम इसको 12 में तोड़ सकते हैं ना सर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 होगा। 12 होगा तो पहला 3 क्या होगा, पहला ये एक एक करके दे देंगे तीनों को, और ये आपका एक होगा। माने अगर हम लिंक में देना चाहें तो मैं यहाँ पे एक डिव लिखूंगा। कोल 1 लिंक 1। आज हम कुछ डिजाइन नहीं करेंगे, ठीक है, आज सिर्फ स्ट्रक्चर बनाएंगे। लिंक 2 लिंक 3, ठीक है। अच्छा, अब क्या करते हैं, इसमें अगर हम लोग कुछ क्लास दे करके कुछ पैडिंग दे देते हैं अच्छा लगने के लिए। पैडिंग कुछ गड़बड़ है क्या? ठीक है, पैडिंग 10, राइट, 20। और ये क्लास को हम यहाँ पे डाल देते हैं। अच्छा, प्रॉब्लम ये हुआ। सर मेरा मेरा जो ख्याल है, मेरा बोलिए जो सर। सर बोल रहा हूँ, अगर एक एक रो को अगर 12 हिस्से में डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। हम्म, एक दो पहला 3 लिंक है वो ठीक है, ठीक है। हम्म, नंबर 4 नंबर जो कॉलम है, ठीक है, हाँ हाँ, वो कॉलम का वाइड, ओके। हम्म, और 5 कॉलम है, वो 4 नंबर कॉलम क्या होगा आपका, अगर 12 से अगर 3 चला जाए तो आपका रह जाता है 9, ठीक है। हम्म, हम्म, तो वो 8, वो 5 हम्म, नंबर जो कॉलम है वो 8 को स्पैन करेगा, ठीक है। हाँ। और 6 नंबर जो कॉलम है वो 1 ही रहेगा, ऐसा करके हो गया। अच्छा, देखिए इसके लिए क्या दिया हुआ है, एक कंसेप्ट दिया है ऑफसेट, ओके। इसके लिए कंसेप्ट दिया है आपको, जस्ट इसीलिए आप लोग, आपको ये डॉक्यूमेंट को अच्छे से अगर जाओगे यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, और डिजाइन करने में बड़ा आसानी होगा, ठीक है। तो जब भी कभी हम लोग गेट सिस्टम से अगर हम किसी चीज को अगर हमको भगाना पड़ता है, माने कि कुछ जगह देना पड़ता है, हटाना पड़ता है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ऑफसेट, ओके। ऑफसेटिंग एंड कॉलम। ऑफसेटिंग माने ये पुश कराना, किसी चीज को, किसी स्पेस को छोड़ देना, खाली छोड़ देना, ओके। तो इसके लिए हम लिखते हैं ऑफसेट, जो भी लिखना है MD, अगर कुछ नहीं देंगे तो खाली ऑफसेट करके उसका नाम दे देंगे, ठीक है। ऑफसेट देने से वो उतना जगह छोड़ देगा। अब मेरा 12 होना चाहिए था, लेकिन मेरे मेरे डिजाइन के हिसाब से अगर हम इसको 12 हिस्से में बांटते हैं, 1 2 3 ले लिया, ये 4 है, 8 हिस्सा मेरा बेकार है, 8 हिस्सा हमको खाली छोड़ना है, क्योंकि मुझे फिगर डिजाइनर ने ये डिजाइन दे दिया है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे ऑफसेट -8। माने क्या करो, 8 हिस्सा को छोड़ दो, देखो चला गया कॉलम 4, अपना पीछे चला गया, ठीक है। अगर हम इसको 7 लिख देते तो एक हिस्सा थोड़ा सा छोड़ के ये आगे आया था। 6 ठीक लिखते है तो और थोड़ा आगे आया था, ठीक है। सर, ये पिक्सल का जो कैलकुलेशन है, ठीक है, ये आप मतलब कैसे डिफाइन करते हो, आप कैसे डिसाइड करते हो पिक्सल का, 20 पिक्सल होगा, 100 पिक्सल होगा, कैसे? वो तो आपका स्क्रीन, अब देखिए मेरे स्क्रीन में, मेरा स्क्रीन अगर लैपटॉप का स्क्रीन देखेंगे तो 1440 पिक्सल होता है इसका विड्थ, ठीक है। अब वो मोबाइल के लिए अलग होता है, मोबाइल के लिए आपका आईफोन देखो, अगर आप इसी में आप रिस्पॉन्सिव में जाओगे, वो विथ हुआ, पिक्सल माने विथ हो गया, ठीक है। और
इसीलिए तो परसेंटेज आ गया मीन। अब यहाँ देखिए, इसका देखिए ये विथ हो गया। अब इसी हिसाब से पिक्सल, ये इतना पिक्सल हो गया, 375 पिक्सल हो गया इसका, माने यहाँ से आता है विथ का लेंथ हो गया 375 px, ठीक है। इसीलिए पिक्सल में आपको डिजाइन करना अच्छा नहीं होता है। बहुत कोई बोलता है पिक्सल में मत करो, उससे डायनामिसिटी नहीं आता, क्योंकि जो आपका, अगर आप ये चीज अगर आप पिक्सल में डिफाइन कर दिए कि इसका विथ इतना पिक्सल होगा, और इसी चीज को जब हम लोग इसमें देखेंगे तो वो एकदम हमको छोटा स्क्वीज लगेगा, ठीक है। इसीलिए ये हाँ सब चीज आया है, कॉल फॉल, ये फ्लेक्स फ्लेक्स, ये सब चीज को ओवरकम करने के लिए ये सारा चीज आया है। वो आगे चल के देखेंगे, जब करने लगेंगे तब देखेंगे, डोंट वरी, ठीक है। मेरा आज का मोटो है कि हम लोग ग्रिड सिस्टम को अच्छे से समझ लें। तो देखिए अभी तक हम लोग कुछ नहीं किए, हमारा मोटो है कि हमको आज ये इस तरह से डिजाइन में आ जाएंगे, एंड देन आई विल डू द सेकंड थिंग। तो देखिए ये सेकंड पार्ट का भी ये चीज समझ में आ गया कि ये चीज मेरा मोमेंट मेरा यहाँ से इस तरह का डिजाइन किस तरह से रीशेप ला रहा है। अब अंदर का चीज बाद में लाएंगे, मेन मेरा मोटो है बेयरबोन स्ट्रक्चर क्रिएट करना। अच्छा सर, या ये आपका जो 20 पिक्सल जो आपने दिया हुआ है, अभी तो आपने ऑफसेट डाला हुआ है, ठीक है। अगर आप हम 20 20 पिक्सल पिक्सल को हटा कहाँ देते दिया, हैं। कहाँ दिया 20 पिक्सल बताइए। अच्छा अच्छा ये एक, जो है, ये ये हाँ हाँ, ये, ये हम डिफाइन कर ले कि यहाँ से तक कुछ कुछ जगह छोड़ो, ठीक है। वो तो आप वो कुछ कुछ आपको मिल जाएगा, जैसे भी यहाँ से तक थोड़ा जगह छोड़ा हुआ है, ठीक है। ये दोनों के बीच में थोड़ा कुछ जगह छोड़ा हुआ है, वो आपको आइडेंटिफाई करना होगा, और वो चीज कितना होगा, इसीलिए ये आपको मिल जाता है, ठीक है। ये आपको मिल जाता है कि दोनों के बीच में कुछ जगह छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है, ये यूएक्स टीम आपको दे देगा कि हमारी हाँ क्या छोड़ना तो है नहीं छोड़ना है। अगर आप पिक्सल को हटा देते हैं यहाँ से, तो भी क्या सेम डिजाइन आएगा? नहीं नहीं, सट जाएगा वो। अगर हम इसको हटा देते हैं, अगर हम इसको हटा ही देते हैं, प्लेन कर देते हैं, तो सट जाएगा ना, क्योंकि हम पैडिंग दिया है लेफ्ट राइट सब जगह से, कुछ स्पेस दिया है, ठीक है। ये हटा देने से ये पूरा सट जाएगा। ये देखो, ठीक है, ये देखो, सॉरी। ये चीज करते करते आता है कि हाँ आपको क्या आना नहीं आना है, ट्राइड एंड टेस्टेड थिंग है। थोड़ा करने से आपका समझ में आता है कि हाँ कुछ मार्जिन देना, पैडिंग देना, क्या देना नहीं देना, वो करते करते आएगा। मैं अभी कुछ किया नहीं, मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा इसको हटा दिया, थोड़ा 10 पिक्सल। ये मेरा स्क्रीन के हिसाब से ये छोटा है, लेकिन जब बड़ा स्क्रीन में देखेंगे तो ये थोड़ा सा आपको और अलग टाइप का लगेगा, ठीक है। ये देखिए स्पेस अब समझ में आ रहा है कि क्या आ रहा है रियलिटी में, ठीक है। यहाँ उतना समझ में नहीं आ रहा। ये देखिए पिक्सल भी तो देने से क्या हुआ, ये ब्रेक कर रहा है, राइट। ये ब्रेक कर रहा है। अगर इसे पैडिंग फाइडिंग नहीं देते, पैडिंग फाइडिंग इसको नहीं देते, तब ये इसको जितना भी छोटा होता, इट वुडंट ब्रेक। ब्रेक हुआ सर। 8, अच्छा 9 देना चाहिए था। नहीं, ठीक तो है। अच्छा ये पैडिंग दिया उतना सा। ठीक है, बहरहाल जो हो। इसको दे देता हूँ ताकि ओवरलैप नहीं हो, ठीक है। और ये तो कुछ है नहीं, ये तो ये रिस्पॉन्सिव के लिए नहीं है, इसलिए ऐसा दिख रहा है। चलिए हम लोग 2 स्टेप चले गए, हम लोग अपना लिंक का बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया, मेरा लिंक किस तरह का होगा और मेरा हेडर किस तरह का होगा। तो यहाँ उसके बाद क्या है सर, ये है, ये आपका एक सेक्शन है। सेक्शन के अंदर देखेंगे मेरा 2 रो होगा, राइट। एक रो में ये है, दूसरा रो में ये है। इंटरनल चीज बाद में, पहला हम लोग एक्सटर्नल चीज करते हैं। तो हम लोग यहाँ आए, बॉडी के अंदर आप देखेंगे, बॉडी के अंदर मेरा डिजाइन के हिसाब से 2 सेक्शन मेरा बट रहा है, सॉरी 2 सेक्शन मेरा बट रहा है। एक मेरा लेफ्ट सेक्शन और एक मेरा राइट पैनल, ठीक है। दोनों बट रहा है। हमेशा जब भी आप करें तो हमेशा नेमिंग कन्वेक्शन ठीक ठाक रखें, ठीक है। तो डेव, इसके लिए हम लोग एक क्लास दे सकते हैं। अभी पहले ये लिख लेते हैं, लेफ्ट पैनल, ठीक है। ये आपका राइट पैनल, ठीक है। अब ये जो दो है, अब ये जो दो है, इन दोनों का परसेंटेज क्या होगा, वो अगर हम अपने डिजाइन देखें तो ठीक है। ये आपका अगर 12 के हिसाब से करें तो ये 9 होना चाहिए, ये 3 होना चाहिए। 25% के हिसाब से लग रहा है, 9 3
ठीक है 75% ये है, 25% ये है, तो हम अपने गट फीलिंग से सोचा कि ठीक है ये होगा, तो हम क्या किए, क्लास दे दिए कॉल लाइन, ठीक है, और राइट पैनल को दे दिए क्लास free। कॉल, ठीक है। कुछ कुछ मेरा डिजाइन आने लगा, ठीक है। अब हम चाहे, जैसा अब हम लोगों ने ये बीबीसी का वेबसाइट देखा, देख के तो समझ में आया कि अरे ये लोग क्या कर रहा है, मोबाइल में कुछ चीज नहीं दिखा रहा है, राइट, दे आर हाइडिंग फ्यू थिंग। क्या चीज हाइड कर रहा है कि ये जो इसमें जो ये जो सारा जो इमेज आ रहा है, वो इमेज को वो हाइड कर दे रहा है, राइट, होम पेज से। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। ओके, ये इमेज को बहुत जगह से हाइड कर दे रहा है, ठीक है। ये आपका इमेज आ रहा है, कंटेंट आ रहा है, और ये इमेज अगर हम लोग मोबाइल में देखते हैं तो वो हाइड हो जाता है। तो अगर हम वो भी सोचे कि अच्छा ठीक है, मेरा भी वेबसाइट कुछ ऐसा होगा कि मेरा लेफ्ट पैनल हर वक्त दिखेगा, या लेफ्ट पैनल मेरा ऊपर दिखेगा, राइट पैनल जो है वो मेरा हाइड हो जाए, या वो मेरा मोबाइल में अलग तरह से, मोबाइल में जब दिखे तो मेरा खाली ये दोनों एक के नीचे एक दिखे। माने मेरा कहने का मकसद है, अगर हम इसमें देख रहे हैं, वेबसाइट में देख रहे हैं, तो ठीक है, ये लेफ्ट पैनल दाया लेफ्ट में, राइट पैनल ये है। मोबाइल में हम लोग सोच सकते हैं कि ठीक है, किसी चीज को हाइड कर दो या किसी चीज को ये हॉरिजॉन्टल में मूव कर दो। तो उसके लिए कैसे करेंगे, यहाँ पर हम लोग ये कॉल लाइन के जगह हम लोग रिस्पॉन्सिव क्लास लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर ग्रिड सिस्टम में जाएंगे तो वी गेट मेनी थिंग। क्या चीज मिलता है कि भाई ये डिफाइन कर देता है कि हम लोग का एक ही डिव डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस में किस तरह से शो करता है, ठीक है। इसके लिए हम लोगों को ये 5 ऑप्शन दिया है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ इसको कि भाई मेरा जो वेबसाइट होगा, हम इसके जगह हम हमेशा SM9 अगर लिखते हैं, तो अगर कुछ नहीं है तो वो स्मॉलर को हमेशा प्रेफरेंस देगा। माने कि अगर मेरा चीज सब सही है तो मेरा डिजाइन कुछ इस तरह का आना चाहिए। क्या हुआ, नीचे क्यों चला गया? एक तो है, अच्छा 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 अच्छा, अच्छा, तो हम इसको यूं लिखे, और अपना जब वेबसाइट में गए, आई कैन सी कुछ चेंज अभी नहीं किया, राइट, कोई चेंजेस नहीं हुआ। ये मेरा लेफ्ट में है और ये मेरा राइट में है। अब इसको अगर हम ऐसा लिख देते हैं, कोल डैश LG डैश 12 और कॉल डैश LG डैश 12, अब इसका माने क्या हुआ, हम इसको बोल दिए कि अगर तुमको लार्ज स्क्रीन मिलेगा तो भैया ये जो तुम डिव है, ये पूरा 12 हिस्सा ले लेना। मतलब अब हम लोग जब पेज में जाएंगे और इसको जब हम रीलोड करेंगे तो यू विल सी ये ऊपर नीचे हो गया। क्यों ऊपर नीचे हो गया सर? योर व्यू प्लीज, कि क्यों ये ऊपर नीचे हो गया? हाँ सर, इसके पहले तक वो सही था। अगर मैंने ये किया, इसको रिफ्रेश किया, आई कैन सी माई लेफ्ट पैनल ऑन द लेफ्ट एंड राइट पैनल ऑन द राइट, ठीक है। लेकिन इसी के अंदर अगर हमने एक और क्लास दे दिया,
और सेम चीज लिखा, लेकिन इसको 12 कर दिया, एंड व्हेन वी रिफ्रेश इट व्हाट हैपेंड, बोथ द थिंग वेंट डाउन। क्यों सर? क्योंकि तब क्या हुआ, आपके पास दो क्लास है, यू आर यूजिंग टू डिफरेंट क्लास, एक SM और एक LG। LG मीन लार्ज स्क्रीन। अगर हम लोग इसके स्क्रीन में जाएंगे, ग्रिड सिस्टम में जाएंगे, तो ग्रिड सिस्टम अलाउ अस द 5 डिफरेंट वे टू राइट आवर क्लास। एक होता है एक्सेल, एक्सेल बहुत बड़ा स्क्रीन, जिसका स्क्रीन 1200 से ज्यादा हो उसके लिए ये चलता है। LG जिसका 992 पिक्सल से ज्यादा होता है स्क्रीन, उसके लिए ये LG क्लास प्रेफरेंस लेगा। MD टैब के लिए, और ये स्मॉल माने मोबाइल के लिए, और एक्सेस जो बहुत छोटा मोबाइल का स्क्रीन होता है पुराना, उसके लिए। जब भी हम लोग कभी दो देंगे, दो क्लास देंगे जो कि सेम वर्क करेगा बट विद डिफरेंट ज्योमेट्री, बट विद डिफरेंट प्रेफरेंस, डिफरेंट थिंग, तो क्या होता है ग्रिड सिस्टम में, सिंस वी आर यूजिंग द ग्रिड सिस्टम, वो पहला फॉलो करना चाहेगा SM को। कब? जब उसके पास उस क्लास उसका स्क्रीन नहीं मिलेगा। बट सिंस हम लोग जब ये स्क्रीन में थे, ये स्क्रीन में है, और ये मेरा लैपटॉप का स्क्रीन है, इट इज गेटिंग द लैपटॉप स्क्रीन, तो वो आपका SM का क्लास को नहीं फॉलो करके, ग्रिड सिस्टम को नहीं फॉलो करके, वो आपका LG लार्ज ये वाला को फॉलो करके आपका क्या किया, ये लेफ्ट पैनल को फुल विथ ले लिया, एंड सिमिलरली ये राइट पैनल को भी फुल विथ ले लिया। अब मैं इसको 4 कर देता हूँ। ओके, नाउ व्हेन आई रिफ्रेश दिस, पहला वाला देखो ठीक टूट गया, लेकिन दूसरा वाला नहीं टूट रहा। अब हम इसको अगर आप और एडवांस में जाएं, एंड सी रिस्पॉन्सिवनेस, तो आप एक चीज गौर करेंगे कि व्हेन आई वेंट टू मोबाइल व्यू इट कम्स डाउन, ये दोनों ठीक नीचे चला गया। ठीक है, और थोड़ा इसको हम लोग चेंज करते हैं। हम इसको अगर ऐसा बोले, कॉल डैश MD डैश 6, कॉल डैश MD डैश 6, ठीक है। अभी देखिए मेरा स्मॉल स्क्रीन के लिए भी बोल दिया कि अगर मेरा छोटा स्क्रीन होगा तो भैया लेफ्ट पैनल तुम 9 हिस्सा लेना, 9 पार्ट ले लेना, राइट पैनल तुम 3 हिस्सा ले लेना। बड़ा स्क्रीन होगा तुम लोग दोनों 6 हिस्सा ले लेना। अच्छा, इसको हम उल्टा कर देते हैं, ठीक है। उल्टा करने से थोड़ा सा बड़ा में हम हिस्सा में तोड़ देते हैं, और स्मॉल में हम बोलते हैं कि तुम लोग पूरा ले लेना। जनरली इसी तरह का ही काम होता है। और टैब में बोला कि तुम लोग दोनों हाफ हाफ ले लेना, आधा हिस्सा तुम्हारा आधा हिस्सा तुम्हारा। इस तरह से हम लोग रिस्पॉन्सिवनेस हम लोग डिजाइन में हम लोग प्रोवाइड करते हैं थ्रू ग्रिड सिस्टम। अब देखिए मोबाइल के हिसाब से, मोबाइल पहला तो मोबाइल के हिसाब से गिरा, हम ये दोनों को भी हटा देते हैं, एक पे रखते हैं, समझ में आएगा अच्छे से। पहला तो ये तो मेरा मोबाइल है, डायमेंशन देखिए मोबाइल है, ये आधा आधा हिस्सा लिया, ठीक है। अब हम अगर टैब में जाएंगे, टैब 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 आईपैड, राइट, आईपैड में गए, क्या हुआ सर, कैन यू सी द स्क्रीन? ये दोनों हिस्सा जो है आपका पूरा, ये दोनों हिस्सा जो है आपका फुल 100% ले लिए। एनी क्वेश्चन? और जैसे ही इससे हम आपका वेबसाइट में आ गए, वेबसाइट में आ जाएंगे, तो ये आपका 9 और 3 हिस्सा ले लिया, ठीक है। इस तरह से हम लोग रिस्पॉन्सिवनेस हम लोग डिटरमाइन करेंगे, ये आपका डिजाइन ये वेबसाइट में किस तरह का दिखेगा, टैब में किस तरह का दिखेगा, या मोबाइल में किस तरह का दिखेगा। गॉट दिस थिंग? हाँ, इसको लेके कोई क्वेश्चन है तो बोलिए। आपका स्क्रीन जितना बड़ा होगा, ठीक है, उतना आपका विथ का जो हिसाब है उस हिसाब से चेंज होता रहेगा। आपका ज्यादा होगा, विथ ज्यादा होगा जितना बड़ा स्क्रीन होगा, और जितना छोटा स्क्रीन, सपोज आप डेस्कटॉप का स्क्रीन को ले लीजिए और आपका लैपटॉप का स्क्रीन को ले लीजिए,
ठीक है। तो डेस्कटॉप का बड़ा वाला जो डेस्कटॉप है उसका आपका विथ ज्यादा होगा, आपका छोटा लैपटॉप जो है उसका स्क्रीन विथ छोटा होगा। नहीं, ठीक है। वो नहीं बोलना चाहिए। ये लेफ्ट और राइट को देखो खाली, ये लेफ्ट और राइट को देखो। सिंस ये मोबाइल है, मोबाइल है, मोबाइल है ना, ये अगर हम इसको मोबाइल में देखते हैं, आईफोन में, आईफोन में इट विल लुक लाइक दिस, ओके। अगर हम मोबाइल से टैब में चले जाते हैं, ठीक है, आईपैड में या टैब में, कोई भी टैब में, टैब में आप देखिएगा, ये दोनों, ये 50% यहाँ आता है, ये दोनों आपका 50-50% एरिया ले रहा है। आप इसको 100% करके देखिए, दिख पाए, ठीक है। ये 50% आपका यहाँ से आता है, तो ये दोनों आधा आधा लिया है। और इसी को अगर हम लोग रेस्पॉन्सिबली से खत्म कर दें और आपका वेबसाइट में देखें, तो जैसा मैंने किया है, ये आपका 75% ले लिया या 25% ले लिया। ये ऐसा क्यों हो रहा है लेफ्ट एंड राइट पैनल? क्योंकि हमने ये जो ग्रिड सिस्टम में, इस तरह से हम लोग रिस्पॉन्सिवनेस डिटरमाइन कर सकते हैं कि अच्छा ये हिस्सा आपको दिखाना है, और इस विड्थ में आपको ये हिस्सा दिखाना है, इस विड्थ में नहीं। तो जब कॉल, जब रो के बाद जब कॉलम जब आया है, माने ये वाला नीचे वाला जो हिस्सा आया है, डिस्प्ले वाला हिस्सा, हम बोल दिए कि अगर स्क्रीन लार्ज होगा तब तुम इसका 12 में से 9 हिस्सा तुम लेना। स्क्रीन अगर स्मॉल होगा तब तुम पूरा हिस्सा ले लेना। तो इसीलिए जब स्क्रीन जब लार्ज हुआ, तब ये जो राइट वाला हिस्सा है, अभी इसको देखेंगे, ये देखिए, ये राइट वाला जो हिस्सा है, वो आपका इतना ले लिया। क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ पे लार्ज में हम बोल दिया कि लार्ज होने पे तुम 9 हिस्सा लेना। तो ये 9 हिस्सा पूरा आपका ले लिया है, 12 में से 9 हिस्सा ले लिया, राइट। और राइट वाला हिस्सा जो है वो आपका 3 हिस्सा ले लिया, ठीक है। अब इसी को जब हम और थोड़ा छोटा कर देते हैं और टैब में चले आते हैं, टैब में चले आते हैं, तो मेरा जो लेफ्ट वाला हिस्सा है वो भी देखो 50% लिया, आधा आधा लिया, आधा लिया, इतना बड़ा लिया जहां तक ग्रीन दिख रहा है। राइट वाला हिस्सा भी आधा लिया, ठीक है। 50-50% क्यों ले लिया? क्योंकि हम यहाँ पे हम जब क्लास जब डिटरमाइन कर रहे थे, हम बोल दिया कि भैया मिड जब स्क्रीन आएगा, मिडिल एमडी जो यहाँ देखिए एमडी में ओवर किए हुए हैं, एमडी जब स्क्रीन आएगा तो तुम 6-6 करके पार्ट लेना, गॉट। और ये जब छोटा जब मोबाइल में चला गया, मोबाइल में चला गया अगेन, मोबाइल के लिए, एसएम के लिए क्या बोला, तुमको जितना भी स्पेस मिलेगा तुम लोग 12-12 लेना, 12-12 माने फुल फुल ले लेना। इसको जो भी विथ मिला, 375 जो भी मिला इसको विथ, ये भी पूरा 375 ले लिया लेफ्ट पैनल, और राइट पैनल भी आपका पूरा 375 विथ ले लिया। हाँ। तो इस तरह से हम लोग रिस्पॉन्सिवनेस कर सकते हैं। अब इस तरह से हम लोग और भी इसको दिखा सकते हैं कि भैया ये चीज को तुम मोबाइल में दिखाओ, बट डेस्कटॉप में दिखाओ, बट मोबाइल में मत दिखाओ। मतलब बीबीसी में देखें कि डेस्कटॉप में क्या आ रहा है, ये टेक्स्ट आ रहा है, बट मोबाइल, सॉरी, हाँ, डेस्कटॉप में टेक्स्ट इमेज सब आ रहा है, बट मोबाइल में जब देखते हैं तो उसी का ही कोई भी सेक्शन को देखते हैं, कह रहे उसमें खाली टेक्स्ट आ रहा है, बट इमेज गैप है, इमेज भी गैप है, और टेक्स्ट में भी सिर्फ हेडिंग आ रहा है, राइट। इमेज भी गैप हो गया, ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी गैप है, हाँ। हम जो बोल रहे हो, ठीक है। तो वो कैसे कर सकते हैं? अ, वो हम लोग करते हैं, रुको, देख लेते हैं, हम नाम भूल गए। डिस्प्ले प्रॉपर्टी, ग्रिड का डिस्प्ले प्रॉपर्टी किधर गया? अरे यार, डिस्प्ले किधर गया? क्या बोलते हैं उसको?
हाँ हाँ, चलिए यहाँ देख लेते हैं। यहाँ सबको बहुत अच्छा, सबसे सबसे अच्छा चीज है डी नन, ठीक है, डी नन करके हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये देखो, ये इसे जो हिडन करके दिया हुआ है, हिडन करके, तो ये क्या बोलना चाह रहा है, किस तरह से हम लोग क्लास को हम लोग हाइड कर सकते हैं, ठीक है। माने हिडन या डी नन, हम लोग डी नन करते हैं, ठीक है, हिडन से हो जाएगा। माने हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि मेरा राइट पैनल जो है वो मेरा जो है टैब में नहीं दिखे, ठीक है, जैसा उन लोगों ने किया है। ओके सर, हाँ हिडन, हिडन डैश करके दे दिया। हम लोगों ने बीबीसी का वेबसाइट देखा, आई टुक अ रैंडम एग्जांपल ओनली, कि बीबीसी का वेबसाइट देखा कि भाई उसका जो मोबाइल्स में है, ये जो सेक्शन है इमेज और ये सेक्शन नहीं दिखता है, राइट, ये सेक्शन नहीं दिखता है, तो वो करने के लिए क्या करते हैं, डी नन कर देते हैं। तो हम लोगों ने वही चीज करके क्या किया, यहाँ पर एक क्लास लिख दिया कि ये जो मेरा जो डिव होगा, ये मेरा अगर मेरा टैब में दिखेगा तो नहीं दिखेगा, मोबाइल में अच्छा दिखेगा। सर, हम्म, उन लोगों ने क्या किया, सपोज आपका जो पोर्शन है, ठीक है, राइट और लेफ्ट पोर्शन, ठीक है, वो हम्म, वाला तो दिख हम्म। रहा है, उसका मेन टेक्स्ट दिख रहा है, लेकिन उसका ठीक है, इमेज वो सब बाद में आएंगे, पहले हम जस्ट फीचर को समझते हैं, ठीक है। वो कहाँ कर रहा है, नहीं कर रहा है, हम वो जो हाइट शो कर रहा है वो कैसे हो पाएगा हम लोग क्लास से, वो करते हैं, ठीक है। हम मैं समझ गया कि उसका जो इसके इंटरनल पोर्शन में, इंटरनल में जब जाएंगे, कल जब डिजाइन सही से करेंगे तब देन वी एबल टू अंडरस्टैंड दोस थिंग, बट ये फीचर समझ लेंगे देन वी कैन इजिली एबल टू वर्क ऑन दोस, ठीक है। तो जैसे मैंने वो क्लास दिया, तो नाउ आई कैन सी द राइट पैनल। जैसे मैं इसको टैब में जाऊंगा, जैसे मैं इसको टैब में जाऊंगा, सी राइट पैनल इज गॉन, राइट। लेट मी मैक्सिमाइज दिस थिंग। राइट पैनल क्यों आया, हिडन एमडी, आई थिंक हिडन नहीं लगता, डी नन लगता, ठीक है। हिडन नहीं लगता है, या डी नन लगता है आई थिंक। या डी नन लगता है, ठीक है। ठीक है, ओके, ये डी नन ही लगता है शायद, हाँ, यही करता था। आजकल इतना सारा चीज हो गया है ना, से सारा चीज आता। अच्छा मैं बता दूंगा, ठीक है, डी नन ही लगता है, बट वाई इट इज नॉट कमिंग, आई थिंक आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग। हाँ सॉरी, डी एम डी नन, ठीक है, ब्लॉक कर दिया। हम्म, तो ये देखिए यहाँ से हम बता दिए कि ठीक है, ये जो चीज है ना, अगर ये एमडी में आएगा, एमडी में टैब टैब में आएगा तो इसे मत दिखाना, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, जैसे ये टैब व्यू में गए, ये राइट पैनल मेरा गैप हो गया, दे आर डूइंग दैट थिंग ओनली, ठीक है। ये जैसे इसको खत्म किया, और इसको रीलोड कर लेते हैं, आना चाहिए था, क्यों नहीं आ रहा है। अच्छा ये मैं बता दूंगा, ठीक है, समथिंग ये क्लास से ही होता है, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द क्लास जिसके लिए ये प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, दैट आई विल शो दोस थिंग। अच्छा हम लोग यहाँ तक चले गए। नाउ हम लोग का नेक्स्ट स्टेप क्या है, कि भाई अंदर का कोई अगर पैनल डालना है, अंदर का पैनल डाल लेते हैं। अंदर का पैनल के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग देख लिए कि अच्छा ये जो है मेरा दो, अब मेरा दो रो होना चाहिए था, वो डाल लेते हैं। लेफ्ट पैनल में एक मेरा रो होगा, ठीक है, और इस पे मेरा दो और रो होगा। अच्छा ये मेरा एक रो बन गया, ये मेरा पूरा बन गया, ये पूरा अंदर। अब इसके अंदर एक और रो होगा, जो ये होगा, ये होगा, ठीक है। रो के अंदर कॉलम भी दे सकते हैं, जरूरत नहीं है, तो हम एक और रो दे करके
और यहाँ पर हम 2 कॉलम दे दें। कॉल दे दिए, ठीक है। ये मेरा रो 1 और ये मेरा रो 2। कॉल 12 देते हैं, एक लाइन पूरा ले लेगा। ये भी कॉल 12 दे देते हैं, जरूरत नहीं, ओपन दिया हुआ रिस्पॉन्सिव बात भी नहीं। ओके, 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 ये हो गया, काम खत्म। राइट पैनल में क्या देखा हम? राइट पैनल में देखा कि मेरा 3 है। राइट पैनल में देखा कि मेरा 3 है, 1 2 3, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेम चीज इसे कॉपी कर लेते हैं। राइट पैनल में जा करके सेम चीज जाते हैं, सेम चीज कर देते हैं, इसको कोल 1 कोल 2, ठीक है। ये मेरा इसे हटा देते हैं, कोल डैश MD डैश 6 रखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कुछ बचा है, कुछ गड़बड़ किया हम। ये कॉल के अंदर सारा चीज है, ये उसके अंदर अपना इंडिविजुअल इंडिविजुअल इंडिविजुअल, ठीक है। ठीक है सर, देख लेते हैं ये कहाँ तक कैसा भागा। ठीक है, ये देखिए, ये आपका कुछ कुछ आपका डिजाइन, आपका जो स्ट्रक्चर होना चाहिए था, कुछ कुछ बन गया। अब इसके ऊपर आपको CSS अप्लाई करके सारा चीज को आपको एक में लाना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका अच्छा, यहाँ से आप ग्रिड सिस्टम में ये सारा आप रिस्पॉन्सिवनेस आप लगा सकते हैं। ये इसमें जितने भी आपके क्लास से जो रिस्पॉन्सिवनेस ला रहे थे, यहाँ पे लाने का जरूरत नहीं है। थ्रू दिस ग्रिड सिस्टम ओनली यू कैन मेक योर वेबसाइट रिस्पॉन्सिव, और ये ब्रेक नहीं करेगा, इट विल नॉट ब्रेक, ठीक है। इट विल नॉट ब्रेक, इट विल वर्क बिना आपका परसेंटेज का आपको झमेला रखना नहीं पड़ेगा, कुछ आपको इतना सोचना नहीं पड़ेगा। इट विल वर्क स्मूथली, क्योंकि ये आपका मोबाइल फर्स्ट का ही टेक्नोलॉजी को लेके बना हुआ है, तो इसलिए क्या होगा कि ये आपका ब्रेकेज नहीं करेगा और आपका छोटा स्क्रीन में भी आराम से काम करेगा। तो नेक्स्ट डे में इसमें CSS लगा करके आपको बताएंगे CSS कैसे लगाते हैं, एंड देन सेम चीज को आपका रिएक्ट में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कि रिएक्ट अभी में भी हम लोग से टेम्पलेट करेंगे। सर इस चीज आज के काम जितना भी हुआ है उसको आप गिटहब हाँ, में पुश कर। बस अभी हम पुश कर दे रहे हैं, एंड आई रिक्वेस्ट यू कि ये वाला ये जो टेम्पलेट में है, आप आज जा करके इसे आप कन्वर्ट करना चाहें, ये जो रिस्पॉन्सिव HTML हो रहा है, इसमें जो क्लास कैसे यूज किया है उसको समझ करके इसमें डालने की कोशिश कीजिए, ठीक है। गड़बड़ होगा, गलत होगा तब उसको समझ में आएगा कि आप कहाँ पे गलत थे। अब देखिए, इसके बाद कुछ नहीं है, इसके बाद आप जब उसको जब स्ट्रक्चर खड़ा कर लिए, यू नीड, अभी अभी मैं चाहूँ तो 1 मिनट में करके सबको करके अभी बता दूं, लेकिन क्या होगा कि वो 1 मिनट में काम खत्म हो, लेकिन समझ में उतना नहीं आएगा कि हाँ कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ हो रहा है, ठीक है। बट हेयर यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड। अब जो यहाँ तक जो हुआ है, ये बूटस्ट्रैप के अंदर ये है, ये चीज आप देख के समझ पाएंगे कि अच्छा ठीक है क्या हुआ। मैंने तो इसमें कोई क्लास बाहर का कुछ यूज ही नहीं किया, जस्ट इसको थोड़ा सा स्पेस देने के लिए यूज किया। उसको भी चाहूँ हटा देता हूँ, टू मेक इट रॉ, टू मेक इट एज रॉ एज आई कुड, ठीक है। एकदम रॉ है, एंड यू कैन इजिली एबल टू कॉप अप दिस थिंग, पीछे ये क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ ओवरलैप हो रहा है, बट आप अगर वेबसाइट में जाएंगे इट विल नॉट ओवरलैप, ठीक है। वो ओवरलैप नहीं होगा, वो कुछ अपना विट्यूट दे देगा, ठीक है। नाउ अब आप इंडिविजुअल चीज को पकड़ करके, जैसे ये हेडर को पकड़ करके
हेडर मेरा इस तरह का होना चाहिए था, ये आपका यहाँ होना चाहिए था। तो इसको पकड़ करके आपको सोच के आपको करना पड़ेगा कि अच्छा इसको मैं क्या करूँ, ये दोनों को क्या करूँ। ये दोनों को करने के लिए इसको मुझे सेंटर में लाना पड़ेगा, राइट। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में थोड़ा व्हाइट कलर है, पीछे कोई कलर नहीं है, तो कुछ ऐसा कुछ सीएसएस देना पड़ेगा ताकि हमको इसका बैकग्राउंड का कलर आ जाए। ये दोनों में देखिए कुछ डिफरेंस दिख रहा है आपको, जहाँ मेरा कर्सर होवर कर रहे हैं, राइट। तो इस तरह का क्या बैकग्राउंड दूंगा, बैकग्राउंड कलर देखने के लिए क्या डालना पड़ेगा, या ये ब्लैक हो गया, ब्लैक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये होवर होने से ग्रे हो गया, राइट। ये चीज चेंज कैसे हो रहा है, ये कैसे करूंगा, ये थोड़ा सा बड़ा है, ये गेट इस तरह का लग रहा है, यहाँ पे ये कुछ इमेज आया, इमेज कैसे लाऊंगा। तो वो एक एक चीज को पकड़ के जब करेंगे तो समझ में आ जाएगा। बट ये आपका आज के लिए क्लास 2 है, ठीक है। कल HTML, ठीक है, STR ये क्लास। आपको ये कमेंट्स। हाँ, और आज की क्लास के लिए एनी क्वेश्चन फॉर नाउ। हाँ, एक तो अच्छा। अच्छा, फुटर वाले में क्या किया आपने? कुछ नहीं, आई जस्ट गिव दिस कमेंट एज फुटर, ठीक है। बाद में जो हमको क्लास देना नहीं देना है, आई कैन सी इट एंड देन आई कैन एक्ट, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा। आ, अब जब आप अच्छे इस पे जाएंगे ना, तो इंस्टेड ऑफ दिस थिंग, इंस्टेड ऑफ रोज कॉलम, क्या यूज करता है, दे यूज सेक्शंस। मैं बता देता हूँ, चलिए, ठीक है। इस तरह से वो लोग सेक्शन यूज करता है, ठीक है। सेक्शन से क्या होता है ना, कि क्या क्या हिस्सा है वो भी डिटरमाइन कर दे, कि सेक्शन ये फुटर है, ये हेडर है। अब बूटस्ट्रैप 4 जो है आपको ये सब, इसके जगह ये हेडर फुटर आपको टैग दे दिया है, ठीक है। ये भी काम करेगा, इंस्टेड ऑफ डिव, इंस्टेड ऑफ ये इस तरह का आप हेडर टैग दे दे, ये आपको फुटर टैग दे दे, ठीक है। वो स्पेसिफिकली ये टैग भी HTML5 के साथ आया है, बहुत सारा टैग्स आया है, ठीक है। वो सब भी दे सकते हैं, ताकि अब मुझसे पूछना नहीं पड़े कि ये किस लिए है, ये कहाँ से आया, राइट। ये टैग देख के ही समझ में आ जाएगा, अच्छा ये हेडर का टैग है, ये फुटर का टैग है। बहुत कुछ सेक्शंस करके यूज करता है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत तरीका है। कभी मैंने फुटर में कुछ नहीं दिया, जस्ट आपका डिजाइन स्टार्ट हुआ। डिजाइन बोलने से कि आपका कैसा कैसा डिव कहाँ कहाँ जा रहा है, वो आपको समझ में आने के लिए यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरह से कुछ अगर दे दूं, क्लास दे दूं एक तो इससे क्या होगा कि ये थोड़ा सा आपको समझ में आएगा कि जो मैंने वहां पे जो मैंने ये किया था, ये बॉर्डर है। हाँ, बॉर्डर 1x, ठीक है। ये आपका डिजाइन किस तरह से बना है, ये आपको डिटरमाइन कर देगा। अच्छा, ये आपका इस तरह का कुछ आपका बन रहा है, ठीक है। जो यहाँ पर जो करना चाहा था, वो कुछ इस तरह का आपका बन के रेडी, ओके। इसके हिसाब से फिर बाद में हम लोग इसको चेंज करके, यहाँ से इसको चेंज करके इस डिजाइन में लेके आएंगे। लेकिन आपका स्ट्रक्चर बन के रेडी है यहाँ से। अब आपको इसको, आप स्ट्रक्चर को रीडेवलप करके, रीडिजाइन करके, थोड़ा सा अपने हिसाब से CSS डाल करके, वी विल मूव एवरीथिंग एंड मेक इट एज अ वेबसाइट जो हम लोग को आँख को थोड़ा सूदिंग लगे, ओके। हाँ, तुम कुछ पूछ रहे थे आई थिंक, ये फुटर के बारे में। तो फुटर में कुछ नहीं दिया, आई डिड नॉट गिव एनी, कोई कंटेंट नहीं, कुछ नहीं है। बट ये होने से क्या हुआ, इट्स अ रिस्पॉन्सिव थिंग, ठीक है। थोड़ा सा ये रिस्पॉन्सिव होगा, जिस तरह से हम लोग वहाँ पे डिटरमाइन कर दिए, उस तरह से ये अपना मूव करेगा, ठीक है। नहीं, मैं और एक बात बोल रहा हूँ, अभी आज का मतलब क्लास के एंड में जब हम ट्राई करेंगे, तब तो पहले बार
तो आपका ग्रिड सिस्टम जो अप्लाई होता है एक वेबसाइट पेज के लिए, उसको हाँ समझकर ये वाला स्ट्रक्चर को थोड़ा और 2-3 वेबसाइट के पेज जो है उसे बनाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हाँ आपने क्या बोला, पिछले अगले दिन वो क्लास में तो मैं नहीं था, उसमें आपने कुछ सीएसएस का यूज किया था। हाँ हाँ, ये वही तो पहले ये CSS करके ये सारा ये सब डिजाइन बनाए थे, ये रिस्पॉन्सिव पेज का ये डिजाइन बनाए थे CSS का यूज करके। ठीक है। ये वाला इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। हम्म। और आप देखेंगे सारा ये अगर हम इसको जस्ट कॉपी कर देंगे या क्लास को जस्ट चेंज कर देंगे, आई विल सी ये आपका डिजाइन जो आप बनाए आप स्ट्रक्चर, इट विल बिकम दिस ओनली। ओके, नाउ आपको ज्यादा चेंज करने के लिए झमेला नहीं पड़ेगा। 50% काम आपका हो गया, 50-60% काम आपका ये स्ट्रक्चर आप ठीक से कर ले और कैसे रिस्पॉन्सिव काम करेगा। इफ यू डू लाइक दिस, तो उसके बाद आपको जस्ट कंटेंट डालना है और आपको CSS डालना है, एवरीथिंग विल वर्क स्मूथली। ओके, तो आपको वो चीज आपको यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ पे जाने से यहाँ पे कुछ कुछ हम डिजाइन डाले हैं, डिजाइन डाल के ये सारा चीज चेंज हुआ है। आप एक एक कंटेंट को, एक एक हिस्से को, जैसे ये जो हेडर के लिए हमने ये दो कंटेंट डाला, आप इसमें डालिए, आप इसमें डालिए, इसमें डालिए, हेडर में वो दो कंटेंट, ठीक है। डाल करके इसमें देखिए क्लास दिया है, क्लास हेडर करके, ये क्लास खोजिए। क्लास हेडर क्या है? क्लास हेडर, दिस इज क्लास हेडर्स में ये दो काम किए। क्या कि भाई पैडिंग दे दिए मैंने चारों तरफ से, ये थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ दिए इसका, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिए कि ये मेरा टेक्स्ट जो भी चीज हम लिखे हैं वो सेंटर में आ जाए। अब बैकग्राउंड में एक तो व्हाइट कलर का इमेज दे दिए, बैकग्राउंड में व्हाइट कलर दे दिए। इसलिए क्या हुआ कि अब अभी जो मेरा वेबसाइट ये ग्रेइश लग रहा है, और ये जो वेबसाइट का देखो बैकग्राउंड व्हाइटिश लग रहा है ना। यहाँ देखिए 20 पिक्सल चारों कोना में छोड़ा, वही आपको बोले थे कि देखिए कुछ छुटा हुआ है, ये बॉक्स टाइप का यहाँ पे दिख रहा है, कुछ छुटा हुआ है, और ये थोड़ा व्हाइटिश है, बाकी ये ग्रेइश पैटर्न में है, ठीक है। अच्छा, एक तो वो हम लोग, सर, पैडिंग का तो 4 हिस्सा होता है, लेफ्ट राइट बॉटम हाँ लेफ्ट। हाँ 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 हाँ, तो ये हम देखिए 10 पिक्सल करके चारों तरफ से देखो छुटा हुआ है, 10 पिक्सल करके सब तरफ से देखोगे 10 पिक्सल करके छुटा हुआ है, ठीक है। हाँ, अगर पैडिंग लिखकर अगर हम 4 प्रॉपर्टी को डिफाइन करेंगे, वो 4 हिस्से में, लेफ्ट पैडिंग, राइट पैडिंग, शायद बॉटम पैडिंग ऐसा करके कुछ है, टॉप पैडिंग हाँ ऐसा हाँ करके कुछ, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। लेफ्ट राइट बॉटम, अगर लेफ्ट पैडिंग बॉटम बोल राइट, लिख दे रहे हैं तो वो तो किस चारों में मतलब। ये चारों में चला जाएगा, ठीक है। लेफ्ट राइट बॉटम ये चारों में चला जाएगा, फोर, ऑल 4 प्लेस, ठीक है। पैडिंग में अगर कुछ स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो लेफ्ट, टॉप, राइट, बॉटम चारों में वो 10 पिक्सल करके ले लेंगे। अभी देखो हम लोग खुद के डिजाइन में, खुद के पेज में, अगर मैं जस्ट ये क्लास को जस्ट में कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ हाँ, ओके, ये किया, ये कॉपी किया, ठीक है। कुछ तो नहीं किया, क्या ये हेडर है, डॉट हेडर, हेडर माने मेरा ये जो हेडर का क्लास है वो ये है, हम इसको रो के साथ इसको हेडर भी दे दिया, ठीक है। देखो डिजाइन थोड़ा सा मेरा चेंज हो गया, एक थोड़ा सा देने से ही मेरा डिजाइन कुछ इस तरह का बन गया। इसको हम HTML में देखते हैं, थोड़ा सा और समझ में आएगा, ठीक है। ये आपका कुछ इस तरह का जगह उगा ले लिया। हुआ क्या, व्हाट हैपन, ये जो मेरा टेक्स्ट जो था जो कहीं और था, ये अब सेंटर में आ गया। उसको सेट करता हूँ, ठीक है। ये मेरा टेक्स्ट इधर था, ये सेंटर में आ गया, राइट। क्यों आया भाई? CSS में देखा कि अच्छा मेरा जो टेक्स्ट लाइन है वो मेरा सेंटर दिया था। फिर मेरा जो बैकग्राउंड कलर है वो मेरा वाइट हो गया। ये बैकग्राउंड कलर इन लोग से थोड़ा सा फर्क है, वाइटिश है, ठीक है। क्यों वाइट हो गया सर? क्योंकि मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड कलर दे दिया था, वाइट दिया था, नहीं देते कोई बात नहीं, दे दिया, मेरा मर्जी, थोड़ा सा अच्छा लगे, ग्रेस से वाइट थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो। और ये देखिए ये चारों कोना में ये देखिए थोड़ा जगह छोड़ दिया, यहाँ बीच का देखिए लाइन में देखिए एक जगह छोड़ा हुआ है, राइट। ये जहाँ पे ये लिखा हुआ, ठीक है, पैडिंग दिया हुआ जगह छोड़ के, ये भी देखिए 10 पिक्सल के लिए छोड़ के, तो वो पैडिंग दे दिया, इसलिए वो 10 वो छोड़ दिया, पुश हो गया अंदर। और यहाँ पे मैंने क्या किया, H1 का
फॉन्ट साइज बड़ा किया, ये जो 50 पिक्सल, ये जो दिख रहा है ये साइज, ये 50 पिक्सल है इसलिए बड़ा दिख रहा है। ठीक है, अगर हम उसको नहीं लिखते कोई फर्क तो नहीं पड़ता। क्या हुआ ये, कहाँ चेंज हुआ? अच्छा ठीक है, सॉरी, यहाँ पे हमने इसको हटा दिया ना, इसलिए सर। ठीक है, ऐसे देने से क्या हुआ, ये साइज थोड़ा सा छोटा था, अगर हम 50 पिक्सल दे दिया तो वो जो दिख रहा है H1 जो दिख रहा है, ये H1 जो दिख रहा है, आ, ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों हुआ, देखिए जब ये डॉट लिखते हैं ना, डॉट का माने होता है क्लास, तो ये क्लास लिया, क्लास के अंदर वो H1 खोज रहा है, क्लास के अंदर वो H1 खोज रहा है कि भाई क्लास के अंदर जो जब भी कोई H1 होगा उसका साइज को तुम 50 पिक्सल बना लो। इसलिए ये इसको साइज को, अगर हम इसको देखेंगे कि मेरा ये इसका साइज कितना है, और इंस्पेक्ट करके जब इसको चेक करेंगे कि जो भी मैंने क्लास जो वहाँ डिटरमाइन किया वो सारा चीज आपका यहाँ पर आ गया। ठीक है, वो सारा चीज आपका यहाँ पे आकर के अपेंड हो गया। तो इस तरह से एक एक, अगर तुम ये CSS को जस्ट तुम ये CSS को एक एक करके डालोगे, यू विल एबल टू देख पाओगे कि आपका पूरा वेबसाइट जैसा बनना था वो बन गया। ठीक है, सिंस यू हैव डन मोस्ट ऑफ द थिंग, तो आपको जैसे ये CSS डालना है, तो स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि आपको ऐसा बनाने के लिए किस तरह का CSS चाहिए, बैकग्राउंड ग्रीन करने के लिए क्या चाहिए, होवर करने के लिए क्या चाहिए। ठीक है, ये टेक्स्ट ऐसा दिखने के लिए क्या यूज करेंगे, पीछे इमेज लाने के लिए क्या यूज करेंगे। तो इसके लिए ये आपका आइदर आप इसमें जाओ, ग्रिड में जाओ, या बेसिक CSS में जाओ, उसका जो कंपोनेंट का यूज है, मैंने डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज का यूज है, वो सब चीज को आप समझोगे, देन ओनली यू कैन डू इट। आई थिंक अगर आप ये दोनों चीज पे कमांड आ गया ना, इट्स ओवर, बस खत्म। कितना कोई आप इस फ्लेक्स में कीजिए, आप ये जैसे हम लोगों ने इसमें किया, ग्रिड सिस्टम में किया, बी ए मास्टर ऑफ ग्रिड सिस्टम। ग्रिड सिस्टम अगर आप मास्टर हो गए, यू विल सी मोस्ट ऑफ द पीपल यूज द ग्रिड सिस्टम ओनली। अगर आपको ग्रिड से नहीं है, आपको फ्लेक्स यूज करना है, फ्लेक्स में मास्टर हो जाइए। मास्टर माने क्या, दिस वे, कि अगर आपको ये चीज पता हो कि आपको कैसे आपको स्ट्रक्चरिंग करना है, कौन CSS देने से क्या काम होगा, और, और हम लोग डिजाइन के लिए मैंने कैसे कि हम लोग क्या ये अगर हमको यूज करना है तो हम लोग कहाँ से ले पाएंगे, डाल देंगे तो हो जाएगा। इतना अगर आपको हो गया, और ब्रेक होने से कैसे इसको हम ठीक कर पाएंगे, इतना अगर आ गया ना, बस CSS दैट्स इट। बाकी सारा आपका क्रिएटिविटी पे है, लर्निंग कुछ नहीं होता। CSS सारा क्रिएटिव इंटरनल क्रिएटिविटी पे आता है, इंसान का क्रिएटिविटी पे आता है। जैसे गिटार बजाना कोई सिखा देगा, नोट सिखा देगा, लेकिन उसके बाद कितना अच्छा बजाओगे वो तुम्हारे अंदर से आता है। इसी तरह CSS खुद के अंदर से आता है, इसलिए इसका ट्यूटोरियल बहुत कम है, आदमी लोग कम सीखता है, क्योंकि खुद खुद का क्रिएटिविटी जितना अच्छा होगा ये उतना अच्छा बनेगा। और ये इसका करने का मल्टीपल वे है, कोई एक वे नहीं है, हजारों तरीका है। तुम किस तरह का अडेप्ट करते हो उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है सर, हम जस्ट, आई थिंक नो मोर क्वेश्चन फॉर टुडे। ठीक है सर, तो मैं एंड करता हूँ, लेट्स स्टॉप द रिकॉर्डिंग।